أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. My dear brothers and sisters assembled in Karachi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let me begin, first of all, by thanking the Khoja Pirai Jamaat and our dear brother Mohsin Bhai Kiwala for giving me this opportunity, this honor and this privilege to address you today through a video that is being recorded. I would have loved to have been with you in person, but distance and commitments make it difficult for us to be together in the same place. Inshallah, sometime in the future. I understand that the gathering today is of students who are completing their high school educations or pursuing the further studies, or some professionals who are already early in their career. In many ways, this reminds me of my time in Karachi when I completed my O-levels and then A-levels, and went on to proceed to the UK to continue with my education in the field of computers. My brother advised me that computer programming, computer science were emerging disciplines which have tremendous prospects. And little did I know that we were at the dawn of the microprocessor revolution, and my career led me to work on this vision of a computer on every desk. And then a few years later, I found that we were ushering in the internet revolution, whereby we were connecting all these computers, enabling people to communicate, to work, and to entertain themselves in various ways. This was really an incredible opportunity, and you can see that the world is quite different today than it was in 1976 when I left Pakistan. I think the opportunity to transform the world to come is in the hands of the people who are gathered today. We saw the web version 1, which was a static web. We saw the web version 2, which is a little bit more dynamic, where enabled people to interact with the websites over there. And now we are at the dawn of a web version 3, which is really what people would like to usher in to reduce the amount of control that's there on the data that we create as we interact on the web. Technologies like blockchain, NFT, artificial intelligence, all these things would play a big role. Crypto would play a big role as we see a world of autonomous computing and internet connected devices becoming pervasive in our homes, in our workplaces, and everywhere we go, even in public places. So whether we like it or not, information technology is here to stay, and all of us need to develop proficiencies in use of computers, whether or not we pursue a career in computer science or computer engineering. Right? We cannot escape coming into contact with technology. We cannot really afford to be conversant and to be informed about how these technologies operate and how can they help us think about new business models, new ways of doing things, right? So in this audience, I can foresee there are accountants, there are business people, there are engineers, computer engineers, there are people who are lawyers, doctors, all professions, right? And every one of you, in some way or the other, will need to be conversant with computer technologies as our world emerges and continues. Now, the question that may be on the minds of many of you, which other technologies are going to work? Which crypto technology, what are the artificial intelligence algorithms, whether it's NFTs are real, or are we just, wasting our time? Well, nobody knows the answer, right? The answer lies in the hands of the people here. You are the leaders of the world to emerge. And it's an exciting time for you. I mean, I'll anytime change my place where I am with your place, right? To see so much runway, to get the runway that's ahead of you. So I think
that's really a very exciting place to be. Now, I don't think the time that I have will enable me to dig down into any of these technologies, and I'm hoping that other people in the conference will be able to walk you through the potentialities of what is emerging. And let me tell you this, that we don't really know exactly which technology is going to take off, right? That depends on you. But I can tell you that there are a few success factors that might really guide you and help you. And I'd like to actually talk about this. I'm a person of faith, as many people in the audience might be people of faith. But I define faith in three dimensions. I define faith in Almighty God, who is our creator, who is our provider, nourisher, sustainer, right? And Allah says in the Quran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, that He created the human being in the best of the possible molds. So I also have faith in myself that I can achieve success and I can achieve progress in my life. And in the same way that Allah has created me in the best of the molds, He also has created my fellow human being in the best of the molds. He too is لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. So this is very important. Now, as a Muslim, one of the things that concerns me is whether we are including the 100% of the population in, evolving the human experience. Specifically, are we involving our other gender in the development of businesses and the development of technologies? I think that if we want to see progress in our communities, and if we only use 50% of our community, then obviously our community will be at a disadvantage. So when we say that we want to have faith in our fellow human being, let us make sure that we include all the human beings, irrespective of gender, race, ethnicity, etc., right? So when we have faith in Allah subhanahu wa ta'ala, faith in ourselves and faith in our fellow human being, including and engaging them, then human miracles are possible, right? But these miracles will only be possible that if we apply ourselves with effort, right? Apply ourselves to the most challenging, pressing issues of our times. And there are plenty of issues, where there's really climate control, right? Where there's inequity, or where there's actually bringing in efficiencies to how life is conducted. How to actually create affordable housing where people can all have decent places, shelter on their foot. All these things are really important challenges of our times. How do we apply ourselves and give the best of us in improving the human experience? Yesterday is gone, tomorrow may never come. All we have is now, right? Very early on in my life, when I was in college, I realized that I'll never be in my college again, in that year of college again. So even though my motivation level was going down at that time, I could not afford to be down. I had to make sure that I do the very best and not be in a position of regret. So I think effort is very, very important. All of you, whether you're a student or you're early in your professional, right? You have today and you have now and you have this moment. Do the very best you can, right? Very best in your studies, very best in delivering on the responsibilities that have been assigned to you, right? Now, when we apply ourselves, we have to ask ourselves, what are we applying ourselves to? We're applying ourselves to improving the human experience. So my third word is humanity, right? Faith, effort, and humanity. If we make these three things the cornerstone of our focus in life, inshallah, Allah will guide us. People who progress are the people who deliver the improve the human experience. If you look at, the information technology revolution created by, say, companies like Microsoft, right? Because they attended to the knowledge worker audience, and they said, how can the knowledge worker become more efficient, more empowered, right, through Windows or through the Office tools? When we look at companies like Google, how did they become successful? Because they enabled buyers and sellers to come together and be able to conduct commerce, right? And you can take this example on to many of the other successful companies. They identified human beings who needed a service. They delivered that service. And because of delivering the service with great value, they were able to build successful enterprises. That opportunity to innovate and to deliver value is with each one of you in this audience,
right? So I repeat again that faith, effort, and humanity are the cornerstones of human progress. If we all kind of keep this in mind, inshallah, Allah will be helpful to us, and will be able to, at the end of our lives, be able to say fustu bi rabbil kaaba, just our Imam Ali said, fustu bi rabbil kaaba. I pray that all of you have a very successful conference and you are able to realize your full potential in this world and inshallah in the hereafter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम बहुत थैंकफुल हैं मोहम्मद जवाद साहब के कि उन्होंने अपने मसरूफ़ औक़ात से टाइम निकाल के हमारे लिए मैसेज रिकॉर्ड किया. अब मैं गुजारिश करूँगा मिस्टर अब्दुल हसन गोकल से, जो कि प्रेसिडेंट है खुद जमात के, कि वो आएँ और आज के इस प्रोग्राम की सिग्निफिकेंस पे थोड़ी सी रोशनी डालें. मिस्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. एक मिसरा था, जाम उसको दे दिया है जिसे पीना नहीं आता. आई थिंक यू आस्किंग मी टू गिव द वेलकम स्पीच ऑन अ सब्जेक्ट कि जिसका ABC मुझे नहीं आता, ये नहीं आती. दैट शोज माई ग्रामर ऑल्सो. हाउएवर इट्स बीन टास्क टू मी, असाइंड टू मी. So to start with, a big welcome to all of you. Thank you for taking out the time to be here. This is part of KPSIJ's function, role, responsibility. Jamaat is a body that is required not only to organize our social affairs, where we provide facilitation in education, health, marriage, ghusl kafan, etc. ये तो प्रोसीजरल चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी एवरीडे रूटीन से है. It would be meaningless for us to exist as the parent body if we did not play the parental role of guidance. So it is part of our responsibility to provide guidance to the youth in terms of careers, in terms of lifestyles, health requirements, and not only provide guidance but provide the infrastructure or the facility or whatever assistance is required, be it monetary or be it in terms of moral support. One thing is for sure, that the pace of change of technology is increasing progressively or geometrically. Today, the subjects or the topics that will be addressed by Khurram Sheikh Sahab are under the umbrella of futuristic or emerging technologies. 30 years later, you will be addressing this seminar or similar seminar where ये terminologies obsolete हो चुकी होंगी. So you have to keep pace, and time cannot pass those who keep pace. You have to not only keep pace but move a few steps ahead of what's happening by being aware of the next requirement, and you adapt yourself or prepare yourself for that from now. That's proactively planning your next steps. Career guidance में यही तो होता है. It's not only the careers that have been successful so far, but you have to keep your eyes on emerging careers. Then we are also guided by our own faith, like Jawad Khaki said about faith, humanity and effort. कि इस वक्त जितने उलूम, जितनी नॉलेज, जितने उलूम इस वक्त आया हैं, this is only a fraction of the knowledge that will exist post Zuhur.
preparing for expansion of knowledge is also our ideological responsibility, so that we are not found lacking when the awaited is here. For a society to be progressive and just, the citizens also have to be progressive and just. This is food for thought. Hopefully, as you progress in wisdom and enlightenment, so shall the society progress as being a just society. Thank you. थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट साहब। अब बिना किसी ताख़ीर के हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, मिस्टर खुर्रम शेख साहब, who has 20+ years of industry experience with specialization in emerging technologies, blockchain, smart contracts, NFTs, metaverse, DeFi, digital core banking, contextual digital products, customer experience and robotic process automation। मैं गुजारिश करूँगा खुर्रम शेख साहब से कि वो आएँ और अपने एक्सपीरियंस की थोड़ी सी लाइट हमें पर भी डाल दें। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ नहीं आ रही? हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज़? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो शुक्रिया जमात का कि मुझे आप सबके सामने आज मौका मिला बात करने का। मेरे से पहले भी इस पे थोड़ी सी रोशनी डाली, तो क्विकली इसके ऊपर जाएंगे। इससे पहले तो मैं थोड़ा सा इसके स्टार्ट करते हैं कि ऑडियंस में से कितने लोग हैं जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं या पढ़ा है या टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, तो काफ़ी सारे लोग हैं। कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल होकर समझाया जाए, पर क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएगी। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी क्योंकि 2009 में मैं, क्योंकि डिजिटल मैंने कंप्यूटर्स में ही अपनी डिग्रीज़ की थी और फिर मैंने सॉफ्टवेयर हाउस से अपना करियर स्टार्ट किया। तो टेक्नोलॉजी में रहते हुए 2009 में मौका मिला कि ये कहानी स्टार्ट हुई एक वाइट पेपर से। जो भी आप इधर देख रहे हैं, एक सतोशी नाकामोटो था, उन्होंने एक वाइट पेपर दिया 2009 में, जो वाइट पेपर का नाम था बिटकॉइन। किस्मत अच्छी थी, वो मुझे मिल गया। समझ में नहीं आया था मुझे 2009 में कि ये क्या है, पर लोग इंश्योरेंस लेते थे, मैंने अपने बच्चों की इंश्योरेंस ले ली। तो मैंने उस वक्त $100 ला के वो रख के और मैं भूल गया, ठीक है। और वाकई में उसको भूल गया था, जैसे नहीं फाइल लेके आप रख लेते हैं कहीं पर। तो मुझे तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं था, मैंने कहा यार देख लेंगे, ये हो जाएगा, तो $100 का हो जाएगा या $150 का हो जाएगा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। 4-5 साल गुजर गए, फिर ऐसे ही न्यूज़ में एक दिन आया कि यार वो तो बिटकॉइन जो है वो क्रैश हो गया, ये हो गया। तो मैंने कहा यार वो मैंने भी लिए हुए थे, तो देख ला क्या है। तो मैं गया तो पता चला कि वो $700 का हो गया। मैंने यार तो $700 का हो गया, ये क्रैश क्यों हो गया, तो बहुत बढ़ गया। तो ये कहानी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो और आज भी बहुत सारे लोग जब ब्लॉकचेन या Web3 की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बातचीत जो चलती है वो क्रिप्टो में चलती है। तो मैंने बात यहाँ से मैंने स्टार्ट की ताकि मैं इस मिथ को सबसे पहले क्लोज कर दूँ कि एक होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कभी भी बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी सीखनी मैंडेटरी है। जैसे प्रेसिडेंट साहब ने ही बोला कि टेक्नोलॉजी अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे दुनिया में। और जो ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम एज अ पाकिस्तानी अभी इसको फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, दुनिया इसको अडॉप्ट कर चुकी है, ठीक है। हम इसको अभी भी फ्यूचरिस्टिक समझते हैं, तो इतना गैप आ जाता है हमारे पास, ठीक है। और तेज़ी से इसको एडॉप्शन इसकी तरफ चल रही है। और इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही अब फ्यूचर पे सारी चीज़ें, चाहे वो कोई एक सेगमेंट नहीं है, जो ब्लॉकचेन है वो कोई एक सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, वो ओवरऑल सारी चीज़ों को टारगेट करता है। तो पर मसला क्या हो गया, हमारी कंट्री में मसला ये हुआ कि जी क्रिप्टो क्योंकि वो फेमस हो गया, तो क्रिप्टो सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का एक यूज़ केस है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के 100 यूज़ केस हो सकते हैं, उसमें से एक यूज़ केस है
क्रिप्टो अगर नहीं होगी तो ब्लॉकचेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एक यूज केस है जो दुनिया ने सबसे पहले बनाया और उसको अडॉप्ट किया, तो वो जिसको कहते हैं ना स्टार यूज केस बन गया, ठीक है। पर इस करेंसी का मसला ये हुआ कि ये क्योंकि इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हुई कि अब समझें कि एक टाइम पर पिछले साल ये बिटकॉइन $70,000 का भी हो, फिर आवाजें लगने लगी कि जी $1 मिलियन का हो जाएगा। अभी दुनिया में कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसके बारे, इवन गोल्ड या डायमंड, जिसके बारे में कोई ये कह भी सके कि इसका 1 यूनिट $1 मिलियन का होगा। सिर्फ ये वाहिद है बिटकॉइन। अब आप माने या ना माने, लोग बोलते नहीं ये हो नहीं सकता, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इस एसेट क्लास को बोलते हैं कि शायद इसका 1 यूनिट $1 मिलियन का हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बातों में रहता है, और जो टेक्नोलॉजी है वो बैकग्राउंड में चली गई है। आप ब्लॉकचेन का नाम लें पाकिस्तान में, अच्छा क्रिप्टो नहीं यार, क्रिप्टो तो लीगल नहीं है, क्रिप्टो तो इलीगल है, ठीक है। तो ये मिथ पहले क्लोज कर लेते हैं कि वो क्रिप्टो का होना या ना होना इज नॉट व्हाट वी आर आफ्टर। वी आर आफ्टर द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विच इज के सबसे पहले तो Web3, फिर ब्लॉकचेन जिसके ऊपर ये Web3 बन रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग मैंने देखा है पाकिस्तान में, क्योंकि मैं बहुत सारा पिछले 2 साल से ट्रेवल कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स इससे डर रहे होते हैं कि नहीं सर कंट्री में लीगल है या वो नहीं है। तो उसकी वजह से हमारी कंट्री की गलत मैसेजिंग की वजह से हमारे बहुत सारी यूथ इसको सीख नहीं रही, और अगर सीखेगी नहीं तो पीछे रह जाएगी। ये इसी तरीके से होगा जैसे 2000 में जब इंटरनेट आ रहा था, तब भी बड़े बड़े जो अखबार थे दुनिया के, वो बोल रहे थे ये बबल है, ये फट जाएगा, ये तो जी फैड है, ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा, और हम उसी में रह के यार इसमें जाए ना जाए, इसमें तो है ही नहीं, और हम पीछे रह गए, और दुनिया आज कहाँ निकल गई। आज हम माइक्रोसॉफ्ट को बात कर रहे हैं, ये हमारे ज़माने की बात है। हम उस वक्त पढ़ रहे थे, हमारे पास मौका था, उस वक्त अगर माइक्रोसॉफ्ट में शेयर ले लिया होता तो आज बच्चे खा रहे होते, पर वो निकल गया, ठीक है। तो इस दफ़ा ये दूसरा मौका मिला है कि क्योंकि इंटरनेट को दोबारा से बनाया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं आगे चलूँगा कि थोड़ा सा मैं इंटरनेट की आपको एवोल्यूशन समझा दूं, क्योंकि ये बात तो अब तय है कि इंटरनेट के बगैर हमारी जिंदगी चल नहीं सकती, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैं करता हूं क्योंकि आज थोड़ा सा कम है टाइम, इस वजह से मैं इसको एक्सरसाइज को नहीं करता। तो मैं बोलता हूं अगर मैं दुनिया से 2 चीजें निकाल दूं, विच इज कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। कंप्यूटिंग पावर जिसको हम बोलते हैं ना, कंप्यूटर में लगा होता है, प्रोसेसिंग होती है जिससे सारे प्रोसेसर चलते हैं, अगर मैं उसको खत्म कर दूं और इंटरनेट को खत्म कर दूं, और फिर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना एक दिन जिंदगी का गुजार के दिखाएं, वो नहीं है तो आप अपना दिन गुजार के दिखाएं। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे जाके करिएगा, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कि अब कंप्यूटिंग पावर नहीं है, दैट मीन्स कंप्यूटर्स नहीं है और इंटरनेट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप बोलिएगा मैं सुबह उठाऊं और मुझे ब्रश करना है, क्या आप ब्रश कर सकते हैं? पानी पी सकते हैं? ये एक्सरसाइज कीजिएगा कि आपका दिन गुजर सकता है। ऑफिस कैसे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ब्रश भी जहां बन रहा है वो कंप्यूटर से फैक्ट्री चलती है, अब कंप्यूटर नहीं है तो फैक्ट्री बंद है। तो इसको थोड़ा सा गुजारिएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है इंटरनेट और ये नई टेक्नोलॉजी। आज आपको नहीं लगता कि मैं तो ब्रश कर रहा हूं, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या कमाल है? भाई वो टेक्नोलॉजी बना हेल्प कर रही है उसको बनाने में। तो एवरीथिंग, ये भी मैं अभी आपके साथ एड्रेस कर रहा हूं, तो इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी का अमल दखल मौजूद है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि क्योंकि ये इतना मैंडेटरी है तो इसको सीखना जरूरी है कि इंटरनेट जो है और ये Web3 जो है वो शेप क्या लेने जा रहा है फ्यूचर में। क्योंकि आप लोग जब आप अपने कैरियर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि अब बिजनेसेस यहाँ पे बनेंगे, Web3 में बनेंगे, ठीक है। तो जब 2000 में सबसे पहले इंटरनेट आया, जिसको हम इंटरनेट 1 कहते हैं, वेब 1.0 कहते हैं, उसको सिंपली इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि जो इंटरनेट 1 था वो रीड था, रीड ओनली, ठीक है। उधर हम सिर्फ रीडिंग किया करते थे, कंज्यूम किया करते थे, ठीक है। इस तरह समझ लें, रीड ओनली समझ लें, या आप समझ लें कि आप सिर्फ कंज्यूम करते थे इंटरनेट को। पेजेस होते थे, आप न्यूज़ पढ़ लेते थे, आर्टिकल्स पढ़ लेते थे और वेबसाइट विजिट कर लेते थे, ठीक है। तो आप सिर्फ कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो जो पहला फेज था इंटरनेट का, इट वाज ऑल अबाउट कंज्यूमिंग द इंटरनेट। दैट मीन्स उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट था कि उसने मालूमात तक, नॉलेज तक, जो नॉलेज इकोनॉमी हम कहते हैं कि आजकल की जो इकोनॉमी है वो नॉलेज इकोनॉमी है और डेटा इकोनॉमी है, और डेटा इज अ ऑयल। तो वो स्टार्ट वहां से हुई थी कि उस में इंटरनेट 1 का सिर्फ जो मेन मकसद था, 1 ऑब्जेक्टिव था कि मालूमात तक रसाई जो है बहुत तेज कर दी गई थी। क्योंकि अगर उससे पहले अगर आप जाएं तो
लाइब्रेरीज हुआ करती थी और आप देखें लाइब्रेरीज फुल हुआ करती थी, आप लोग किताबें पढ़ते थे। किताबें आज भी पढ़नी चाहिए, बच्चों को आदत डालें कि किताबें पढ़ें, चाहे डिजिटली पढ़ लें, पैड पे पढ़ लें, फिजिकल नहीं पढ़ रहे तो, पर किताबें पढ़ने से शऊर आता है, किताबें पढ़ने से वोकैबुलरी बढ़ रही है, वो इंटरनेट उससे टेक अवे नहीं कर रहा। बट जहां पे बात आती है कि नॉलेज तक रसाई, तो आपको वेट नहीं करना कि एक बुक जो है वो उधर रिलीज हो रही है, वो कब हमारे पास पहुंचेगी। वो मुझे आज भी याद है, वो जंबो की होती थी, बड़ी दुकान होती थी, उधर जाके हम लेते थे, वो बुक खत्म हो गई। तो इंटरनेट वन ने जो नंबर वन ऑब्जेक्टिव अचीव किया, आपकी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस बहुत तेज कर दी। उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि पहली बार जिंदगी दुनिया में, आपने एक बात सुना होगा कि पहले जब लोग जाते थे अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री, जब वहां से वापस आते थे तो वो एक जुमला जरूर बोलते थे, यार बहुत आगे हैं वो हमसे, बहुत आगे हैं यार, हम तो बहुत पीछे हैं उनसे 10 साल। और मैंने वेब3 में बोला कि जैसे हम पीछे हैं, पर इंफॉर्मेशन ने क्या किया, इंफॉर्मेशन के एक्सेस ने कि इस बैरियर को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि अब जो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा जिस इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है, उसी टाइम पे वो आपको भी अवेलेबल है इधर पाकिस्तान में बैठे हुए, कि आप उस आर्टिकल को पढ़ लें, उस टेक्नोलॉजी पेपर को पढ़ लें, किसी व्हाइट पेपर को पढ़ लें, ठीक है, किसी टेक्नोलॉजी के बोर्ड की ड्राइंग को देख लें, ठीक है। तो ये इंटरनेट वन का जो इंटरनेट था शुरू के ईयर्स का, उसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज था, ठीक है। फिर उससे आगे बढ़े हम, इंटरनेट 2 आया। इंटरनेट 2 जो था, वेब 2 जो था, जिसमें आज हम रहते हैं मोस्टली, ठीक है, वेब 3 में तो अभी जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं ना, आज जिसमें आप रहते हैं ये वेब 2 है, ये वेब 2 का डेकेड। इसमें क्या हुआ, तो इसमें इंटरनेट 1 वाली सारी चीजें थी, बेसिस रीड ओनली, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मौजूद थी, बट इसमें फिर राइटिंग भी आ गई, ठीक है, रीड एंड राइट हो गया ये, ठीक है। तो कंज्यूम एंड डिलीवर, ठीक है। डिलीवर से मुराद ये है कि ये कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी बन गई, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन की इकोनॉमी से मुराद क्या है, इसमें आपने फिर प्लेटफॉर्म्स देखे, फेसबुक एंड यूट्यूब और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, जिसमें आज हम रहते हैं। ये क्या है, ये कंटेंट क्रिएशन है, ठीक है। दैट मीन्स अब अगर मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं तो मुझे आईए चंडीगढ़ पे जंग के धक्के नहीं खाने, उसके साथ साथ हार्डवेयर पीस भी बन रहा था, एक मोबाइल बन गया, मोबाइल पे आ गया, कैमरा आ गई, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स, जो एक हैवी डिवाइस ये लगी हुई है, वो सारे अब एक मोबाइल के अंदर मौजूद हो गए, ठीक है। तो वो साथ चल रही थी, उसके साथ साथ वेब 2 आ गया, ये प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो वेब 2 में क्या हुआ कि ये हर किसी ने कॉम्बिनेशन ऑफ वेब 2 इंटरनेट विद दिस डिवाइस, विद दिस मोबाइल, आपको ये पावर दिया कि आप अपनी किसी स्किल की बेस के ऊपर, वो किसी तरह की भी स्किल है, ठीक है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, या आप अच्छे प्रोग्रामर हैं, ठीक है, तो फ्रीलांस कर लें, आप काम हासिल कर लें, काम बना के अपना काम सेल कर दें, तो आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, कंटेंट क्रिएट करके और उसको मोनेटाइज कर सकें, ठीक है, राइट, रीड एंड राइट, डिलीवर, ठीक है। तो आप कंटेंट क्रिएट कर उसको मोनेटाइज करके अर्निंग कर सके। इंटरनेट 1 में अर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वो सिर्फ कंजम्पशन था। वेब 2 में अर्निंग आई, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम सब वेब 2 में तो रहते हैं, पर उसका जो मेन मकसद है उसको हम उससे फायदा नहीं उठाते। तो पहले क्वेश्चन किया था कि कितने लोग इंटरनेट पर हैं, तो आई थिंक 70-80% लोगों ने तो टेक्नोलॉजी में हाथ उठाया। अब मेरा दूसरा सवाल है, जब हमने ये तय कर लिया कि वेब 2 का जो मेन मकसद था वो क्या था, कंटेंट क्रिएशन एंड अर्निंग, अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना, फेसबुक पे यूट्यूबर्स आपने देखे, टिकटॉकर्स देखे, आप देख रहे हैं कि वो इतना कमा रहे हैं, वो इतना कमा रहा है, ठीक है। तो क्या है, अर्निंग है ना। इंटरनेट 2 ने आपको अर्निंग का मौका दिया कि आप अपने घर पे बैठ के अपनी स्किल्स को सेल करके, अपनी स्किल्स से कंटेंट क्रिएट करें, किसी तरह का भी कंटेंट हो, ठीक है, और उसको आप अर्न करके उसको मोनेटाइज कर सकें, ठीक है। तो पर अनफॉर्चुनेटली हम वेब 2 में सोशल मीडिया पाकिस्तान यूज तो बहुत करता है, हम शायद दिन में 4-5 घंटे सब कोई लगाता होगा, पर क्या जिस मकसद के लिए उसको यूज करना है, अर्निंग, उसके लिए यूज कर रहे हैं? तो कितने लोग आज इंटरनेट से इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं? हाथ थोड़ा ऊपर कर लें, ठीक है। तो आप खुद देख लें, हम 80% टेक्नोलॉजी के लोग हैं, सबने हाथ उठाया, वेब 2 में रह रहे हैं, और सवाल जब हुआ कि आप अर्न कितने लोग कर रहे हैं इसमें से, तो आई थिंक 10% आ गया रेशो,
ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स में। तो ये नहीं हो सकता कि दुनिया इंटरनेट 2 में इस इकोनॉमी में रह रही है। अगर ये मैं वेस्टर्न कंट्री में कर रहा होता, इतना ऑडियंस होता, 90% हाथ उठा दे कि जी हम इंटरनेट से अर्न करते हैं। हमारे पास वो 10% है और ये यूथ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी ने ये समझाया नहीं कि वेब 2 का मकसद सिर्फ ये नहीं है एंटरटेनमेंट। हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा है इसको, ठीक है। अच्छा, अब तो ये फर्क है उनमें। वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का राइट यूजेज क्या है। हम टेक्नोलॉजी के राइट यूजेज के अलावा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उसको मोस्टली यूज करते हैं। तो उससे कुछ भी नहीं आ रहा, हमारी इकोनॉमी भी नहीं बढ़ सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप 2022 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आ जाए। अब टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आएगी, और टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन तब आएगी जब आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा ये भी हो जाता ना तो आदमी बोलता यार ठीक है चलो अब बच्चों को समझा दिया। पर मुसीबत ये हो गई हमारे साथ कि अब मैं दूसरा सवाल ये करूंगा कि हमें ये तो पता चल गया कि इंटरनेट से इस यूथ में भी कोई नहीं कमा रहा, तो ये डॉलर हमारे इकोनॉमी में भी नहीं आ रहा, इसलिए हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है। हम 2022 में भी एग्री और इंडस्ट्री के पीछे लगे हुए, जहां पे दुनिया, इंडिया की मिसाल ले लेना, इंडिया ने इंटरनेट को वर्जन 1 में भी बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जब बीपीओ और उन्होंने सर्विसेज वगैरह लगाई, और उन्होंने इंटरनेट 2 को भी बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया, और उनकी इकोनॉमी, अब इंडस्ट्री और वो बहुत पीछे रह गई है, उनकी इंटरनेट इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, क्योंकि वो वक्त के साथ चल रहे हैं, वो वक्त से पीछे नहीं चल रहे। 1980 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी दुनिया में, हम इंडस्ट्री लगा रहे थे, दुनिया भी इंडस्ट्री लगा रही थी, बात समझ में आ रही थी। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम खत्म हो चुका है और हम अभी तक एज ए कंट्री उसी के पीछे लग रहे हैं। अच्छा, आ जाए अब दूसरा प्रॉब्लम कि अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं, वो हाथ ऊपर करें, जो सोशल मीडिया पे दिन में आधा घंटा लगाते हैं और कमेंट और लाइक्स करते हैं, दिन में एक भी करते हैं, ठीक है, ठीक है, सब कर रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आप कंट्री से भी कर रहे हैं, अपने आप से भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वेब 2 का पर्पस क्या है। आपने जब लाइक और कमेंट किया, ठीक है, तो आपने किसी का तो डॉलर बनवाया, पर क्योंकि उसको आपने मोनेटाइज नहीं किया हुआ अपने लिए, तो आपको उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, ठीक है। आप आज भी वीडियोस आती हैं आपके पास, आप ठग से उठा के शेयर करते हैं, टक 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 100 बंदों को शेयर कर दिया, उसका 1 रुपया नहीं मिला आपको। उसी चीज को अगर आप मोनेटाइज कर दें, तो जो काम आज कर रहे हैं आप, हम नहीं बोल रहे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करना है, हम बोल रहे हैं जो काम आप कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, दूसरों के लिए शेयर कर रहे हैं, वो करें, वही करें। मैं नहीं कह रहा कि आप 2 घंटे लगा रहे हैं तो 3 घंटे लगाना स्टार्ट कर दें, जो लगा रहे हैं उसको तो कैपिटलाइज करें। इसका प्रॉब्लम क्या है इस सारी उसको समझाने का, कि जब हम टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशंस का असल मकसद समझते ही नहीं है, तो हम पीछे रह जाते हैं, दूसरे आगे निकलते हैं, ठीक है। अब आ जाते, तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अब हम वेब 3 को समझेंगे और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि वेब 3 में फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अभी ऐसी लगेंगी कि यार ये तो कुछ मतलब बहुत अजीब सी बातें हो रही हैं कि वेब 3 में तो ऐसा हो जाएगा। तो सिर्फ समझने वाली बात है कि वो जो होना है, पर उसका जो मेन मकसद क्या है कि रीड हुआ, राइट हुआ, ये हमने एग्री कर लिया वेब 2 में, ठीक है। तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन भी हो गई और अर्निंग भी हो गई, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम ये आया कि वेब 2 में जब अर्निंग्स हुई, तो जब ब्रेकअप निकाला गया कि यार ये तो जबरदस्त तरीका हो गया, अब तो हर घर में इंटरनेट पहुंच गया है, तो ये तो फिर ह्यूमन अपलिफ्ट होना चाहिए था, ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट होनी चाहिए थी। अफ्रीका को तो ऊपर आ जाना चाहिए था, वहां पे बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज होता है और वो पर वो तो नहीं हुआ, पाकिस्तान भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम अभी आपको मैंने बताया, यूज तो कर रहे हैं पर फायदा नहीं उठा रहे। तो पता ये चला कि उधर भी वेब 2 में कुछ प्लेटफॉर्म्स आ गए और उन्होंने बोला कि अच्छा हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है, और आप में से 2 बंदे उठाए उन्होंने बोला तुम कंटेंट क्रिएट करो, और दूसरे को बोला तुम कंटेंट देखो। देखने वाले को बोला, वो टर्म्स एंड कंडीशन होती थी स्टार लगा के नीचे नीचे, तो उससे छुपाने की कोशिश की कि तू सिर्फ तेरा फायदा क्या है, तू देख रहा है, तेरे को फ्री में चीज मिल गई, ठीक है। कुछ इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने बोला नहीं फ्री में नहीं देखूंगा, मैं तो पैसे भी लूंगा इसके। पर हम जैसे बहुत अभी देखे हमने
हमें ये फ्लेवर दिया, मैंने फ्री में देख ली, फेसबुक में से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता, मैं तो फ्री में प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, हमारे दिमागों में ये डाला गया। तो एक साइड उन्होंने कवर कर दी, ठीक है, पर एक साइड थी जो कंटेंट क्रिएटर था वो इसमें नहीं आ सकता था, तो उसको उनको कुछ शेयर देना पड़ा कि हाँ ठीक है, तुम जो कंटेंट क्रिएट करोगे तो यूट्यूब में जब आप बोलते हैं कि वीडियो, आपकी वीडियो पे इतने व्यूज आए तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे, तो वो कंटेंट क्रिएटर को पैसे दे रहे हैं, पर डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो सही नहीं थी। 100 रुपया कब बन रहा है तो 10 रुपये उस बेचारे को मिल रहे हैं, 90 रुपये प्लेटफॉर्म लेके जा रहा है। तो वो जो था कि यार ये एनालिसिस हुआ कि यार ये जो इतना जबरदस्त रेवोल्यूशन आई, मोबाइल भी आ गया, हर कोई जो कंटेंट बना के बड़े पैसे डॉलर कमा रहा है, पर ह्यूमन अपलिफ्ट तो नहीं हुआ अभी भी, इसमें तो बहुत ज्यादा आ जाने चाहिए। अभी भी ये हुआ कि कुछ कंपनीज आई और उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, और ये बेचारे इधर जो कंटेंट क्रिएटर्स बैठे हैं, या प्ले स्टोर पे देख लें आप, प्ले स्टोर क्या है, एप्पल क्या है, एप्पल से अगर आप एक चीज उनका स्टोर निकाल दें, नथिंग, 0/0। कैमरा देता है वो मुझे, पर वो कैमरा का क्या फायदा जब मेरे पास एप्लीकेशंस नहीं होंगी। या एंड्रॉइड है, और मजे की बात आप देखें कि वो खुद कुछ नहीं बनाते, उनके पास अगर 1 लाख एप्लीकेशंस हैं ऐप स्टोर में, तो क्या एप्पल ने बनाई है या गूगल ने बनाई है? नहीं, उन्होंने तो नहीं बनाई, हमने बनाई है। डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम था कि आपको दिया पैसा, इंटरनेट 1 में तो वो भी नहीं मिल रहा था, पर इसमें मिला, पर वो डिस्ट्रीब्यूशन खराब थी, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म्स फिर ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझा दिया, नॉन टेक्निकल लोग, ठीक है। अब आ जाए वेब 3 में। वेब 3 में फिर इस तरह के जो बहुत सारे लोग थे, वेब 3 का जन्म एक समझ लें एक बगावत है इस सिस्टम के थ्रू, जो ये सिस्टम है, जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। वेब 2 को इन्होंने मार्केट बहुत अच्छा किया, एम्पावर कर दिया है जी, हमने आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पर वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसको गूगल्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड फेसबुक्स ऑफ दिस वर्ल्ड और ये कंट्रोल करते हैं। पहले हमारा एक 1 से पहले सिस्टम था जो आज भी चल रहा है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, दुनिया का सिस्टम है, गवर्नमेंट का बेस का सिस्टम है, गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो जो सेंट्रलाइज सिस्टम के लोग थे, लोगों ने बोला यार मतलब टाइम मेरा, डिवाइस मेरी, इंटरनेट मेरी, इन्वेस्टमेंट तो सारी मेरी है जिस पे ये वेब 2 चल रहा है, खर्चा मेरा, जगह मेरी, कंटेंट मेरा, स्किल्स मेरी, क्रिएटिविटी मेरी, सब कुछ मेरा, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जो रेट वो डिसाइड करता है सेंट्रल अथॉरिटी है फेसबुक, वही हमें मिल जाता है, और उसके बाद इतनी बड़ी लिस्ट दे देते हैं कि अगर तुमने ऐसे हंसा तो फिर बंद कर देंगे तुम्हें, अगर तुमने ऐसे हंसा तो, तुमने बाल ऐसे बनाए तो हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स होने लगे, अब उसको रिजॉल्व करना था। तो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि पहले टेक्नोलॉजी, बगावत तो तब होगी जब कोई टूल होगा ना हाथ में। मैं ऐसे बगावत कर दूं और फिर मैं बैठा रहूं फिर 2 दिन के बाद कि यार ये कर तो दिया मैंने, बात तो कर दिया, इसको अमल कैसे करना है। तो पहले टेक्नोलॉजी बनाई गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी थी? ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है? एक ओपन लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी, ओपन एंडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप में से बहुत सारे कुछ होंगे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सुना होगा, पर ये ओपन टेक्नोलॉजी, ओपन लेजर बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसको इस मकसद के लिए ही बनाया गया था कि सेंट्रलाइजेशन को खत्म किया जा सके, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जो कि ओपन लेजर के ऊपर है, जो नॉन सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके ऊपर मजीद आते हैं। तो पहले मैं वेब 3 को खत्म कर लूं। तो वेब 3 रीड राइट, अब इसमें तीसरा एट्रीब्यूट है जो वेब 3 का इंपॉर्टेंट है, विच इज ओनरशिप, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई। वेब 1 क्या था? रीड। वेब 2 क्या था? राइट। तीसरा क्या है? वेब 3। इसमें कौन सा एट्रीब्यूट ऐड हुआ है? ओनरशिप। इसको पकड़ना है, किसी गिमिक्स में नहीं आना। भाई वेब 3 में ये है, ये ब्लॉकचेन एनएफटी, तो ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी सीखनी है। वो पर्पस क्या है वेब 3 को लाने का? ओनरशिप। तो आप लोग जब भी वेब 3 में आए, कोई भी काम करें, कोई ऐप बनाएं, कोई कंटेंट बनाएं, ठीक है, तो इसमें नहीं जाना कि आपको बोले ये ले लो पैसे। भाई वो वेब 2 था, अर्निंग तो वेब 2 थी। सवाल करना है ओनरशिप बताओ, ओनरशिप क्या है मेरी इसमें, ठीक है। अदरवाइज वो आपको इसमें घुमा के $10 से $30 करके खुश करके निकाल देंगे। तो वेब 3 इज ऑल अबाउट ओनरशिप, ठीक है, कि हम इस इंटरनेट को ओन करेंगे। अमेजॉन एंड गूगल ओन नहीं करेगा। आज अगर कोई बोले अमेजॉन में, यार अमेजॉन जबरदस्त है यार, मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, वो बोलेंगे मेरा शेयर पकड़ लो, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ो।
आप वेब 2 के इंटरनेट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। वेब 3 का इंटरनेट ये लोग नहीं बना सकते, सबको बनाना है और बन रहा है, ठीक है। तो ओनरशिप, इस ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को लेके ही ब्लॉकचेन बनाया गया। तो ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जिसके दो मेन हिस्से हैं, विच इज ये चलती है नोड्स के ऊपर। नोड्स होती हैं दो, ठीक है। एक होती है इनकी वैलिडेटर नोड्स, एक होती है इनकी ट्रांजैक्शनल नोड, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कोई भी ट्रांजैक्शन होना, कोई ट्रेड की अगर कोई ट्रेड होना है ना, अल्टीमेटली तो एक ट्रेड होना है, ठीक है। आज भी जब भी हम कोई चीज करते हैं, दो बिजनेस की ट्रांजैक्शन एक ट्रेड ट्रांजैक्शन होती है, उसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है, ठीक है, मोस्टली। तो इसके अंदर हमारे पास जब ये ट्रांजैक्शन जाएगी तो उसको प्रोसेस करना है। उसको प्रोसेस आज वेब 2 में इंटरनेट को जो लोग स्पॉन्सर करते हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाते हैं वो ट्रांजैक्शन, जैसे वीजा की ट्रांजैक्शन करते हैं ना आप लोग, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम वीजा की ट्रांजैक्शन करते हैं तो वीजा ने एक नेटवर्क बिठाया है, उसमें आपकी और मेरी कोई ओनरशिप नहीं है, ठीक है। तो हम वीजा की जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक फीस हिट होती है, वो फीस किसकी है? वीजा की। वो वीजा की पॉकेट में जाती है क्योंकि वो नेटवर्क चला रहा है, ठीक है। तो यही नेटवर्क, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन जाती है तो उसको प्रोसेस होना है, उस प्रोसेस के लिए वीजा ने किया क्या है? वीजा ने एक सॉफ्टवेयर लिखा है और दूसरा हार्डवेयर लगाया है, प्रोसेसिंग पावर किया ना, कंप्यूटिंग पावर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटिंग पावर और उसका सॉफ्टवेयर उसने लगा के हम सबके लिए आसानी कर दी और उसने बोला इसके मैं पैसे लेता हूं। तो हमें ये पता चला कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है उसको प्रोसेस होना है ना, उस प्रोसेस के लिए एक प्रोसेसिंग पावर चाहिए जो कि आज सेंट्रलाइज्ड कंपनीज ओन करती हैं और वो लगाती हैं। तो ब्लॉकचेन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने बोला ठीक है यार, हम इंटरनेट को एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं, अनसेंट्रलाइज कर रहे हैं, और ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस आएंगी प्रोसेस होने के लिए वो उनकी नोड्स प्रोसेस करेंगी, ठीक है। मल्टीपल नोड्स होंगी और नोड्स कोई भी लगा सकता है, एक इंडिविजुअल कहीं पर भी बैठा हो, बाउंड्री लेस, कंट्री लेस, कोई रेगुलेशन नहीं है, वो एक आम आदमी भी वो नोड लगा सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है वेब 3 के इंटरनेट के ऊपर। तो ब्लॉकचेन को चाहिए नोड्स जिसके थ्रू वो नेटवर्क चलता है, और वो नोड्स ओन कौन कर सकता है? इन्वेस्ट उसमें कौन कर सकता है? उसको ओन कौन कर सकता है? आप जैसे और मेरे जैसे लोग। फेसबुक भी लगा सकता है, मना नहीं है, पर हम भी लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं। ये इसकी बेसिक्स है जिसके ऊपर वो चलता है। तो उसके ऊपर हमारी ओनरशिप आ गई, हमने इन्वेस्टमेंट कर दी छोटी नोट के ऊपर, बड़ी की नोट के ऊपर, और वो प्रोसेसिंग कर रही है ट्रांजैक्शन जो भी नेटवर्क पे हो रही है दुनिया में। उसके बाद उसका जो रिटर्न आ रहा है उस प्रोसेसिंग का, हमारी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें उसको शेयर मिल रहा है। तो क्योंकि इंटरनेट वेब 3 बेस कर रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, और क्योंकि हमने बोला कि वेब 3 इज ऑल अबाउट ओनरशिप, तो नोड्स के थ्रू आपको ओनरशिप मिलती है, ठीक है। और नोड्स बिकम्स योर डिजिटल एसेट, ठीक है। तो हमने आज तक जो एसेट्स क्लास पढ़ी हैं, गोल्ड इज एसेट क्लास, कम्युनिटी इज एसेट क्लास, अब ये डिजिटल एसेट्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद, क्योंकि ब्लॉकचेन इसका फंडामेंटल है, तो यू कैन से कि जी मैं ब्लॉकचेन में वेब 3 इंटरनेट है और मेरी नोड है, दैट मींस आई ओन अ पीस ऑफ दिस न्यू इंटरनेट, ठीक है। तो मेरी नोड है, मैंने कंट्रीब्यूट की हुई है। नोड बेसिकली, अच्छा अब नोड में आ जाते हैं कि इसमें दो तरह के नोड्स होते हैं। जब शुरू हुआ था जैसे बिटकॉइंस और ये जब आए थी, इसमें आया था, ब्लॉकचेन में होता है फिर कंसेंसस मैकेनिज्म्स, ठीक है, कि जब ट्रांजैक्शन जाएगी तो वो कितनी नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेंगी कि हाँ हम ये गवाही दे रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, और उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम अपने पास स्टोर कर रहे हैं एक पब्लिक लेजर के ऊपर, एक्सेसिबल फॉर एनीवन टू सी, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ओपन लेजर है। अच्छा, दूसरी मिथ आपको आएगी कि जी ये क्रिप्टो और ये ट्रांजैक्शन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होंगी और इसके ऊपर ये दूसरी चीजें हो जाएंगी, और ये तो ये इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब आप बोलते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी, तो हर वो बंदा जो कुछ छुपाना चाहता है वो उस सिस्टम की तरफ जाएगा, ठीक है ना। मुझे कोई अगर चीज छुपानी है तो मैं उस सिस्टम की तरफ जाऊंगा, ठीक है। ब्लॉकचेन पे क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो होती है वो पब्लिक नोट्स कर रही हैं, और उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली ओपन लेजर होने की वजह से आपको भी एक्सेसिबल है, मुझे भी एक्सेसिबल है, और उस इंफॉर्मेशन को कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। वो इस वजह से डिलीट नहीं कर सकता कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रांजैक्शन भेजी कि मैंने
मैं पर्सन एक्स हूँ पाकिस्तान में, मैं एक पैसे भेज रहा हूँ पर्सन वाई को यूएस में, ठीक है, तो एक ट्रांजेक्शन है, फंड ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन। तो जब वो ब्लॉकचेन पे जाएगी तो उसको कोई एक नोड प्रोसेस नहीं करेगी। ब्लॉकचेन पे मिनिमम 12 नोड्स चाहिए होती है टू प्रोसेस मिनिमम अ फंड बेसिक ट्रांजेक्शन। 12 से कम होंगी तो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी। और ये 12 नोड्स 12 कंट्रीज में भी हो सकती हैं। दैट मीन्स आपकी ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड है वो ओपन लेजर पर 12 नोड्स के पास सेव है और वो 12 नोड्स डिफरेंट कंट्रीज में रहे। तो आज अगर कोई भी सेंट्रलाइज्ड बॉडी गवर्नमेंट भी आ जाए और बोले कि जी इस ट्रांजैक्शन को खत्म करो, वो नहीं कर सकती, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। वो 12 कंट्रीज में 12 प्राइवेट नोड्स कहां से ढूंढेंगे और उनको कहां से कंट्रोल करेंगे। आज तो वो एक रेगुलेटर को बोलते हैं भाई इसका डिपॉजिट बंद करो, जैसे यूक्रेन में हुआ जी, बैंक का डिपॉजिट बंद कर दिया गया। सेंट्रलाइजेशन है, इधर डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो अच्छा, उसकी ट्रेल भी फिर सब क्या अवेलेबल है ओपन लेजर होने की वजह से, एवरीबॉडी कैन सी दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि जब हम नॉन एनएफटीज में आएंगे तो वो इंपॉर्टेंट। तो हमने बोला कि अब ये नोट्स किसने लगाई हुई है, हमने लगाई हुई है, हम कंट्रीज में लगे, हम प्रोसेस कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुई, उसका रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं। इसी की हमारे पास एक ट्रांजैक्शन फीस आ रही है जिससे जो ओनर्स ऑफ द नोड्स हैं, जो इसको ओन कर रहे हैं, उनकी एक ट्रांजैक्शनल इनकम जनरेट होती है, ठीक है। तो जब शुरू में हुआ तो ये इसके अंदर इसको बोलते हैं, जब ट्रांजैक्शन जाती है तो कंसेंसस मैकेनिज्म, कि कितना कंसेंट मिला। तो 12 नोट्स का कंसेंट मिला कि जी ये ट्रांजैक्शन हम अप्रूव कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं और अप्रूव कर रहे हैं और इसकी रिसिप्ट भी अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। तो कंसेंसस जो होता था वो उसके 2 मैकेनिज्म होती थी, एक होता था प्रूफ ऑफ वर्क, दूसरा होता था प्रूफ ऑफ स्टेक। तो जब शुरू में करेंसीज आई थी बिटकॉइन, ये चलती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। तो आप लोगों में किसी ने सुना होगा यार वो बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती हैं, तो वो सही बात है क्योंकि कंप्यूटिंग पावर ही लगाना होता था ना, तो आपको मशीनें लगानी पड़ती थी बड़ी। ये होता था प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब आपको ये प्रूफ करना पड़ता था कि आपकी नोड लाइव है, वो काम कर रही है, उसकी हार्ट बीट आ रही है, अगर वो बंद है तो वो नोड काउंट नहीं होगी। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। और मेजर जो ब्लॉकचेन्स आज भी चलते हैं वो इस प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तो बेचारे घरों में छुप छुप के बेचारे छोटे छोटे मशीनें लगा रहे हैं, पर बाहर के दुनिया में आप बड़े बड़े जैसे अमेजॉन है, इसी तरह से लोगों ने बड़ी बड़ी जो है ना बिटकॉइन की और ब्लॉकचेन की नोड्स की जो है बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर वो सर्व करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो चलाते हैं उसको। तो वो होता है प्रूफ ऑफ वर्क, जब एक लाइव मशीन हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और वो प्रोसेस कर रहा है ट्रांजैक्शंस को, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अब मोस्ट रिसेंटली लोगों ने फिर सवाल उठाना स्टार्ट किया कि इससे तो बहुत एनर्जी यूज होती है जी, ठीक है ना, क्योंकि मसला हमारी वर्ल्ड के साथ ये सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ एक मसला ये भी है ना कि अगर कोई चीज़ अच्छी पैदा हो जाए तो फौरन कीड़े भी निकालने होते हैं। तो जी वो आ गया जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से हो रही है, दूसरी चीज़ों की वजह से नहीं हो रही जो इंडस्ट्री ने 40 साल किया। ये अब जो ये जो है वो एनर्जी यूज हो रही है इसके अंदर, और तो ये आवाज़ें जब लगने लगी तो फिर इंडस्ट्री ने बोला अच्छा ठीक है हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब मोस्टली रिसेंटली प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये है कि अब जरूरी नहीं है कि आपकी नोड हर वक्त लाइव रहे, ठीक है, टू बी काउंटेड। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब ये है कि आपने एक बार अपना कंप्यूटिंग पावर जो है वो कमिट किया, ठीक है, टू दिस नेटवर्क, वो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ डिजिटल करेंसीज देते हैं, ठीक है, इक्वलेंट टू दैट इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर। उस करेंसी को आपको होल्ड करना होता है और उसको प्रोवाइड करना होता है फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का अभी सिर्फ ये समझ लें क्योंकि टाइम की कमी है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में वो हार्डवेयर मशीन होने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटल करेंसीज को होल्ड करते हैं जैसे आज टर्म डिपॉजिट्स होते हैं या जिस तरीके से आज आप गोल्ड होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप जैसे हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या बोलती है मेरे पास इतना गोल्ड रिजर्व में पड़ा है उसके अगेंस्ट में मैं करेंसी निकालता हूं, तो उधर आपको कंप्यूटिंग पावर इधर रिजर्व लगाकर स्टेक लगाकर उसके अगेंस्ट में एक डिजिटल करेंसी मिलती है। वही सेम मैकेनिज्म जो दुनिया चला रही है गोल्ड करके, हमने बोला जी हम जो है कंप्यूटिंग पावर को एज अ एसेट गोल्ड का रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जिसका जितना कंप्यूटिंग पावर है उसको उतने कॉइन्स इशू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि बेसिक ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर है क्योंकि कोई एक पार्टी इसको कंट्रोल नहीं कर रही और इसको इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं, ठीक है।
तो रीड राइट एंड ओनरशिप, ये मेन चीजें इसके अंदर हैं। तो इससे अगर अब आप देखें इस कमरे में जो भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको ये समझना है कि आगे अब हम जितनी चीजें चल रहे हैं, कुछ हम यूज केसेस भी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब ये चीजें हो गई, बेसिक्स हैंडल हो गए, जिसकी वजह से ये सिस्टम लाया गया था कि जी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट का राइट हर किसी के पास होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, ये रिजॉल्व हो गए, टेक्नोलॉजी अब रेडी थी। अब बात आ गई यूज केसेस के ऊपर कि जी अब बताएं और यूज केसेस क्या है। क्रिप्टो एक यूज केस है, ठीक है, नोट लगा दिया, ठीक है, उससे कुछ पैसे कमा लिए, पर अब आगे क्या, बिजनेस यूज केसेस, रियल लाइफ यूज केसेस इसके ऊपर आए, ठीक है। तो उसके बाद जब हम मूव हुए तो उसके बाद अब ये कॉन्सेप्ट आए जिसमें 3 मेन एरियाज के ऊपर आजकल काम चल रहा है, जो बड़े बड़े यूज केसेस हैं, जो दुनिया के प्रॉब्लम्स को हम रिप्लिकेट कर रहे हैं इन चीजों के ऊपर, जो आज आप दुनिया की टेक्नोलॉजी या दुनिया के सिस्टम के अंदर चीजें नहीं कर सकते, वो इधर इस टेक्नोलॉजी के थ्रू होते हैं। वो कौन सी चीजें हैं? एक है एनएफटीज, दूसरी है डेफी, तीसरी है मेटावर्स, ठीक है। तो पहले एनएफटीज को टच कर लेते हैं कि मैं इसको क्विकली एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ जो बना हुआ है इसका मेन फाउंडेशन हमने समझ लिया कि ओनरशिप है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आज प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि मैं ये बोलूं कि यार एक अपार्टमेंट लेना है, 4 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है यार, ठीक है। तो आज दुनिया में नामुमकिन नहीं है ये, पर बहुत ज्यादा मुश्किल है ये कि 10 बंदे मिलके बोलें यार अपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो तो जाएगा, ठीक है, पर बहुत मसला होगा, और फिर इसको सेल ऑफ करना तो उससे भी ज्यादा मसला है, ठीक है। क्योंकि एसेट की फ्रैक्शनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है फिजिकल, जो लीगल स्ट्रक्चर और लीगल पॉलिसीज हमारी हैं उसमें फ्रैक्शनलाइज करना उस अपार्टमेंट को, एक को 10 हिस्सों में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। यही सेम चीज को हल करने के लिए इस वर्ल्ड में एनएफटीज का कॉन्सेप्ट है। एनएफटी क्या है? एक नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसकी लेनी चाहिए? कोई भी सोसाइटी में नाम नहीं लेता, कोई सोसाइटी तो आपको पता है ना, उस सोसाइटी की क्या आती है, फाइल्स आ जाती है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ी बिजनेस कम्युनिटी की हैं भी, तो आई थिंक के फाइल्स वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे भी, तो फाइल्स आ जाती है हमारे पास। आपके फाइल है, वो फाइल आप रखे थोड़े से के बाद फाइल पे क्या मिलता है, वो कुछ ओन भी मिल जाता है, क्या आप दे देते हैं उसको। तो फाइल क्या है? फाइल आपका सिर्फ प्रूफ है ना कि आपने ये चीज इस सोसाइटी में जो बनने वाली है 2 साल के बाद आने का प्रूफ है आपके पास कि आप उसके ओनर हैं, ठीक है। यही जब डिजिटल में है, तो डिजिटल में उसी सेम चीज को, उस एग्जाम्पल को लें और इस फाइल को लें, तो अब आप इसको इधर, आपको इस रियल एस्टेट के सिनेरियो के अंदर आपको इधर कोई फाइल वाइल नहीं मिलेगी, आपको एक एनएफटी मिलेगी, विच इज नॉन फंजिबल टोकन, जो आपकी ओनरशिप ऑन द ओपन लेजर। ये ट्रांजेक्शन तो आपको पता है पीछे ब्लॉकचेन चल रहा है, तो जब आप ये ट्रांजेक्शन करेंगे, जो 10 लोग आ गए, उसने बोला जी मैं अपार्टमेंट लेना चाहता हूं, तो उन 10 के पास फ्रैक्शनलाइज्ड ओनरशिप होगी एनएफटी की सूरत में उस अपार्टमेंट की। और ये ट्रांजैक्शन वैलिडेट किसने की? पब्लिक नोड्स ने। ये स्टोर कहां हुई? ब्लॉकचेन पे। तो आज मैं दुनिया में कहीं पर भी जाऊं और मैं अपना ये एनएफटी दूं टू द सेलर कि भाई ये मैं बेचना चाहता हूं, मैं इसका ओनर हूं, सिर्फ इसका 10% ओनर मैं हूं, बाकी 9 और मेरे पास है, पर मेरा 10% तुम ले लो, तो आपको इन 9 से पूछने की इजाजत नहीं है। आपका ये टोकन, आपका ये फ्रैक्शनल ऑफ एसेट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट आपकी ओनरशिप के साथ ही ब्लॉकचेन पे लिखा गया है, और उसका आपके पास एक टोकन मौजूद है, डिजिटल टोकन। अब सेलर आया, सेलर ने आपकी एनएफटी ली और उसने इंस्टेंटली ऐप के थ्रू वो डाली और वेरीफाई हो गई कि हाँ आप इसके ओनर हैं। कहीं उसको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे लिखी हुई है। ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है, ओपन लेजर के ऊपर वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट होकर पड़ी हुई है। तो फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ एसेट्स इज द वन मेजर यूज केस जो एनएफटीज के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। और दुनिया अब इसकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो रियल एस्टेट की हमने एग्जांपल ली, इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों की एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जहां पर भी आपको फ्रैक्शनलाइजेशन। अच्छा, फ्रैक्शनलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फ्रैक्शनलाइजेशन का फायदा अगेन वही हो जाता है ओनरशिप का कॉन्सेप्ट, कि एक चीज 4 करोड़ रुपए की है,
तो हमने गिमिक्स तो बना ली ना यार, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है जी, ओनरशिप है और ये है और वो है और ये जबरदस्त हो गया, पर 4 करोड़ तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो अफोर्डेबिलिटी भी तो लानी थी ना। जो वो क्वेश्चन था कि वेब 2 ने क्यों नहीं अपलिफ्ट किया, तो मैं अब नहीं बोल सकता है 4 करोड़ ले ले, मैंने टेक्नोलॉजी जबरदस्त कर दी है तो इंस्टेंटली ले सकता है, पर 4 करोड़ निकाल। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था कि रीचेबल भी हो लोगों की हद तक। एक रिटेल इन्वेस्टर है, अगर वो बोले यार मेरे पास 4 करोड़ नहीं है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं 10 लाख से भी वो ले सकूं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ एसेट्स बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी enables everybody to own not 100%। इसी वजह से बिटकॉइन अगर $70,000 का है तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप $1 का बिटकॉइन भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि आपको एक बिटकॉइन लेना है, 17,000 होंगे तो आप आ सकते हैं, आप $1 का ले लें, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे एसेट्स जो दुनिया के हैं उनको अब दुनिया में यहां पर तो बहुत कम है, पर दुबई चले जाएं आप, दूसरे जहां पे इनको बहुत ज्यादा काम चल रहा है, उसमें आपको आप प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट्स हैं कि भाई आप एनएफटी ले लें, आप 10% ले लें, आप 5% ले लें, आप 1% की एनएफटी ले लें, आप अपार्टमेंट के ओनर है और उसका जो रेंट आएगा उसका भी शेयर आपको एनएफटी की शेयर की वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिस्ट्रीब्यूट भी होता रहेगा। तो अगेन ये एनएफटी का एक यूज केस है जो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स जो होते थे हमारे पास उसको रिजॉल्व करने के लिए आ गया। ये एक टोकन, डिजिटल टोकन है जो आपकी ओनरशिप को ऑन द ब्लॉकचेन आइडेंटिफाई करता है और ऑथेंटिकेट करता है, ठीक है। अच्छा, एनएफटी के अंदर ये है रियल वर्ल्ड केसेस, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग जब एनएफटी को पढ़ें तो इस कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़िएगा आगे, ये इसका ट्रू बेनिफिट है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी एनएफटी की, क्योंकि पिछले साल इसका बूम बहुत ज्यादा आ गया था कि कुछ बंदर नजर आएंगे आपको नजर आ जाएगा ये बंदर जो $1 लाख का है जी, आप बोलेंगे यार ये बंदर की तस्वीर $1 लाख की क्यों है, ठीक है। तो जब कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू में आती है उसका एक बूम आता है, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टेबल एनएफटीज। जो कलेक्शंस होती थी ना, आपको पता है आर्ट्स में जैसे पहले हम पिक्चर्स रखा करते थे, भाई ये पिक्चर है सादिकीन की मेरे पास है, ये एक ही पीस है दुनिया में और इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं लगा सकता, ये नहीं लगा सकता। तो एनएफटीज जब शुरू में आई थी तो वो ज्यादातर एनएफटीज का जो बूम आया था वो इस कलेक्टेबल्स वाली दुनिया में आया था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्राइसेस चली गई थी, मतलब अनइमेजिनेबल। आज तक की जो सबसे महंगी एनएफटी है, ठीक है, वो एक, अब उसको मैं क्या बोलूं, पर वो एक कार्टून है समझ लें। वो पेंट अगर किसी ने यूज किया ना, पेंट पे हम वो पिक्सेल्स बना देते थे, उसकी एक पिक्चर है, ठीक है। वो $50 मिलियन की बिकी थी, ठीक है। 50 मिलियन रुपीज नहीं, $50 मिलियन की बिकी, ठीक है। तो इनसेन प्राइसेस भी गई थी, पर वो एनएफटीज थी कलेक्टेबल्स, वो आई, बूम आया, बहुत ज्यादा लोग। अब उसका सिर्फ फायदा ये था कि अब मैं बोलूं या नहीं है तू इसका ओरिजिनल ओनर नहीं है सादकिन का, ये तेरी पिक्चर नहीं है, ये डुप्लीकेट है ये। तो अब मैं जिसके घर पे बैठा हूं ना, मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं ये कर सकूं कि ये ओरिजिनल पिक्चर है या नहीं है, मुझे जबान पे जाना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं कि मैं इसको वेरीफाई कर सकूं कि वाकई ये ओरिजिनल और सिंगल पीस है या नहीं है। उस एनएफटी टेक्नोलॉजी क्योंकि इसे पब्लिकली वेरीफाइबल एनी टाइम एनीवेयर, तो उसकी वजह से बूम जरूर आया था कि लोगों ने बोला था, जैसे एक जो ट्विटर जब लॉन्च हुआ था तो उसका जो फाउंडर था उसकी जो फर्स्ट ट्वीट थी ना, दुनिया की फर्स्ट ट्वीट, वो एनएफटी करके बिकी थी। तो अब वो जो उसका ओनर था उसने बोला भाई मैं ओन करता हूँ दुनिया की, जब ट्विटर आया तो दुनिया की जो पहली ट्वीट आई थी वो मेरे पास है, और वो उसको कहीं भी जाएगा दुनिया में बोलेगा, इधर आएगा क्लास में आके बता दे तो आप उसको फौरन उठा के वेरीफाई कर, हाँ ये सही कह रहा है, ये एनएफटी सही है, ये वेरीफाइबल है, इंस्टेंटली वेरीफाइबल, पब्लिक लेजर होने की वजह से। तो इस एंगल की वजह से बहुत सारे लोग जो कलेक्शंस और इस तरह की चीजें, पैसा तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है ना, तो इस वजह से उस बूम की वजह से वो बहुत ज्यादा हो गया था और डाइवर्ट हो गई थी इंडस्ट्री। उसकी मेन, जैसे मैंने आपको बताया ना, हर जैसे वेब 2 में आज तक हम कैसे यूज कर रहे थे वो हमने एक्सरसाइज कर ली, इसी तरीके से ये इसकी डाइवर्जन हो गई थी। बट एनएफटीज का मेन पर्पस अगर हम उसके रूट से जोड़ें विच इज ओनरशिप, तो ओनरशिप का एक टोकन तो मिलना है ना, ठीक है। कैसे पता चलता? तो वो डिजिटल ओनरशिप जो है वो एनएफटीज होती है, नॉन फंजिबल टोकन होता है, उसको कोई फज नहीं कर सकता, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वो एक बार ओपन लेजर पे क्रिप्टो ग्राफिक फार्मूले से लिख दी गई तो वो लिख दी गई, वो सिक्योर है, आज तक कोई वो हैक नहीं होती, ठीक है। हैक मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हैक नहीं हो सकती, ह्यूमन एरर की वजह से आज भी हैकिंग होती है जो आज दुनिया में होती है, पर इलेक्ट्रॉनिकली अगर उसको कोई हैक करना जाएगा, जो उसका हैश है
बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक। तो ये एनएफटी हो गया। तो ओनरशिप, तो जब ओनरशिप के ऊपर बेसिस थी तो ओनरशिप की रसीद समझ लें, एनएफटीज हैं, उसके अब यूज केसेस दुनिया एक्सप्लोर कर रही है कि जिसका सबसे बड़ा चीज जो दुनिया ने बोला कि यार इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ एसेट्स करें, फिजिकल एसेट्स के डिजिटल एसेट्स में उसके टोकन्स बनाएं और फ्रैक्शनलाइज करके आम बंदे की रीच तक पहुंचा दें, ठीक है। जिसके हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की। तो अगर आपको कोई हाउसिंग स्कीम करनी है तो आपको फाइल्स देने की जरूरत नहीं है, अब आप डिजिटल एनएफटीज देकर उनको दे सकते हैं। फायदा सिर्फ ये है कि वो फाइल पता नहीं ट्रेड हो, पर एनएफटीज फिर क्योंकि डिजिटल नहीं है ट्रेड भी होती हैं फिर, ठीक है। तो आपने ले लिया एक एनएफटी अपार्टमेंट, उसको आप चाहें तो ट्रेड कर दे, सेकेंडरी ट्रेड में जाके उसको बेच भी सके तो उसकी वैल्यू भी कैपिटलाइज हो जाती है, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती है। तो इस एसेट की कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती रहती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं कि बहुत बड़ा जो यूज केस दुनिया में है वो है फाइनेंस, ठीक, बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो और ये एक रूट कॉज है दुनिया में, क्योंकि अगर आज देखें कि इस आप लोग बैठे हुए हैं, तो जब हमारे पास 2 ही तरीके हैं ना पैसे कमाने के, नौकरी करके कमा लें या बिजनेस से कर लें, और तीसरा तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो दुनिया में जब फाइनेंशियल सिस्टम आया था उसका जो मेन पर्पस था, जो वो भूल चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही भूला हुआ है, ठीक है। उसका मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि यार लोगों को जॉब्स तब मिलेंगी जब उसी स्पीड से नए बिजनेसेस भी बनेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम है, अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो उसका, जैसे हमारे पास डिस्टर्ब हुआ है, हमारे पास लोग रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा आ रहे हैं, बिजनेसेस कम लग रहे हैं ना, इसी इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए कि ये पैसा टू क्रिएट न्यू बिजनेसेस कहां से आए, उसकी 2 सोर्सेज हैं, ठीक है। या तो गवर्नमेंट दे, सोशल वेलफेयर स्टेट हो, गवर्नमेंट दे, या बैंक्स दें, तीसरा तो कोई नहीं है। या फैमिली फ्रेंड, जैसे हमारे पास अब सिस्टम है, आपके पास है, जमात का सिस्टम है, फैमिली का सिस्टम है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप लेके स्टार्ट कर देते हैं। बट पैसा हैज टू कम इन ऑर्डर फॉर बिजनेसेस टू बी क्रिएटेड। आइडियाज होंगे, हमारे पास भी होते हैं, जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं निकलते हैं, आइडिया होता है पर पैसा चाहिए होता है। तो पैसा कहाँ से आना है? जो माशरे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या है, या तो गवर्नमेंट पैसे दे रही होती हैं टू हेल्प सपोर्ट बिजनेसेस, या बैंक्स देती हैं, ठीक है, लोन की सूरत में देती हैं, बिजनेस वर्किंग कैपिटल की सूरत में देती हैं। हमारे पास दोनों काम नहीं हो रहे हमारी कंट्री में, ना हमारे पास कोई सोशल वेलफेयर स्टेट है, ना बैंक्स जो हैं वो कंज्यूमर की लेंडिंग करती हैं, ठीक है। अच्छा, पर प्रॉब्लम उसमें ये आया कि अब पाकिस्तान स्पेसिफिक तो हम तो कहीं पे है नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्रीज में तो फिर है, फिर इस पे क्यों क्वेश्चन रेज हुआ? तो फाइनेंशियल सिस्टम जब 2008 और उससे पहले क्या हुआ कि लोगों ने ये बोला कि यार प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिस्टम बनाया गया है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें अगेन पैसा एज अ डिपॉजिटर मेरा है और बोरोर आप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी जो बैंक है, ये मतलब ये वडेरा बन के कहां से आ जाती है? मुझे बोलती है 5% ले, चलो लॉलीपॉप, आगे वाले से लेती है 20%, ये 15% कहां जा रहा है? और बीच में इंटरमीडिएट्स दूसरे भी बहुत हैं। तो वो फाइनेंशियल सिस्टम जो बनाया हुआ है आज, वो सही तरीके से अगेन उस प्रॉब्लम को विच इज अपलिफ्टिंग, जिस मकसद के लिए था, उसको उस तरीके से सर्व नहीं कर रहा था। तो जैसे हमने एग्जांपल ली कि वेब 2 में जो डिजिटल इकोनॉमी में ये फेसबुक्स और वो जितना शेयर कमा रहे थे, और आपको और हमें जो रियल कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको उस परसेंटेज के हिसाब से नहीं मिल रहा था। फाइनेंशियल सिस्टम का भी ये प्रॉब्लम है कि कंट्रीब्यूटर्स आप और हम ही हैं, और उधर फेसबुक की जगह एक फाइनेंशियल सिस्टम, एक बैंक बैठा हुआ है जो कि ज्यादा ग्रेवी ले रहा है, ठीक है। तो उस पे फिर उसी यूज केस को उठा के इधर लाया गया, जिसको हम कहते हैं डेफी, विच इज डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ठीक है, कि जी फाइनेंस को भी डिसेंट्रलाइज करना होगा।
ये ठीक है। तो चौधरीपन खत्म करना होगा, विच इज ये हम डिपॉजिटर और इसको इस तरह से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर अगर रूम में किसी के पास कोई आइडिया है, ठीक है, तो नॉर्मली आपके पास जो हमने तरीके बताए कि आप एक आइडिया लेके जाएंगे, बोलेंगे अपने अम्मी अबू के पास जाएंगे, फैमिली के पास जाएंगे, वो एक लिमिटेड आपको चीज़ दे देंगे, उससे आप थोड़ा बिजनेस सेट भी कर देंगे। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे हमारे बिजनेस बनते हैं, और मैं जिन बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं ये बिजनेस बात नहीं कर रहा, अलहमदुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे गुड़िया बाजार का छोटा दुकान वाला भी बहुत ज़्यादा कमा रहा है। और जब मैं बिजनेस की बात करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ, क्यों नहीं हमारे पास ब्रांड बनते पाकिस्तान, क्यों नहीं ग्लोबल कंपनी बनती। छोटे लेवल पे तो हमारे पास माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिजनेस कम्युनिटी थी, पर वो क्यों नहीं बढ़ पाते आगे, क्योंकि लिमिट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो। अगर आपको बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट चाहिए, और कैपिटल की रिक्वायरमेंट फ्रेंड फैमिली उससे होके वो एक लिमिट आ जाती है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग चाहिए ही होती है कि एक्सपेंड, उसके बगैर आप जा नहीं सकते। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आज किसी के पास आइडिया है कोई भी बिजनेस करने का, तो वो स्टार्ट करके उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो कर देगा, ठीक है, उसके बाद वो जाएगा बैंक में। तो बैंक तो यहाँ पे कंज्यूमर लैंडिंग नहीं करती, ठीक है। बैंक बोलेगी ये इसमें ये भी मसला है, ये भी मसला है, आप ये दिखाएं वो दिखाएं, तो क्योंकि वो आती नहीं, गवर्नमेंट का उसके पास कोई चीज़ आती नहीं। तो फिर अब जो नया लॉलीपॉप आ रहा है पाकिस्तान में, वो आ रहा है वीसी मनी, ठीक है, वेंचर कैपिटल की मनी। यार पिच बना लो अच्छी और वेंचर कैपिटल के पास चले जाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आ भी रहा है पाकिस्तान में पैसा, उसकी स्पीड भी बढ़ी है, जितना पोटेंशियल है उतना तो नहीं आ रहा, पर अच्छा आ रहा है, ठीक है। पर जो वीसी मनी है वो जो बैंक की मनी है या गवर्नमेंट की मनी से उससे ज्यादा खतरनाक मनी है, ठीक है। क्यों? ये रीजन है इस वजह से कि 100 स्टार्टअप में से एक सक्सेसफुल होता है, 9 फेल हो जाता है। वो आपके स्टार्टअप में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, ठीक है। वो आपका पोटेंशियल देख रहा है, उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज कैसे करना है, जल्दी से कैपिटलाइज कैसे करना है, अपने वीसी को डबल मनी को कैसे करना है। वो कोई कंपनी बना के चलाने नहीं आया दिन ब दिन आपके साथ, आपका वो ब्रेड एंड बटर है, उसका नहीं है। उसके बाद अगर $1 लाख है ना, तो उसने 10 कंपनीज में लगाए हुए हैं और वो उम्मीद कर रहा है 10 में से एक चल जाए। आपका तो एक ही ब्रेड एंड बटर है, ये मिसमैच है। बहुत अच्छी डील्स भी होती है, मैं नहीं कहता, पर ये 3 तरीकों से चीजें चल रही थी। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आपको ये मौका देता है, जो इसका मेन यूज केस है वो ये है, इसको इस तरह से समझ लें कि अगर आपके पास आइडिया है, क्योंकि ब्लॉकचेन है ना, ब्लॉकचेन एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं थोड़े से स्टेप्स बता देता हूं कि अब करना क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपको वेब3 की कंपनी बनानी है, चलो ये मेरा अगला टॉपिक था, पर उसको ही इसमें कवर कर लेते हैं कि वेब3 में अब किया क्या जाए। तो वेब3 में अगर कंपनी बनानी है आपको, तो आपके स्टेप्स क्या होंगे। तो आइडिया तो आपका ही होगा, जो भी आइडिया है आपका, चाहे वो फिजिकल आइडिया, आपको चावल ही क्यों नहीं बेचने और उसको डिजिटली बेचने, ठीक है, और आपको वेब3 में बेचने हैं आप, ठीक है। तो वेब3 में अगर आपको कंपनी बनानी है, तो वेब3 के लिए आपको करना क्या है कि पहले जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन तो करवाता है ना, भाई बताओ अपना बिजनेस प्लान बताओ, ये बताओ वो ही चीजें आपको बनानी है। आपको एक सिंपल वेब पेज बनाना है और वेब पेज के ऊपर आपको अपना बिजनेस आइडिया, अपना बिजनेस प्लान, आपका रोड मैप को पब्लिश करना है, और फिर डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसकी रीच करना है कम्युनिटी तक। ट्विटर के थ्रू, डिस्कॉर्ड के थ्रू, ये 2 चैनल यूज होते हैं जिस पे वेब3 की सबसे ज्यादा कम्युनिटी है। आप इस क्या जा रहे हैं, आप अपना आइडिया जा रहे हैं और आप आ रहे हैं वेब3 की कम्युनिटी के पास टू फंड रेज। किसी वीसी के पास नहीं जा रहे, किसी बैंक के पास नहीं जा रहे, आप बोल रहे हैं कि जी इंडिविजुअल्स के पास जा रहे हैं। वेब3 इज ऑल अबाउट ओनरशिप। तो कम्युनिटी जो वेब3 की कम्युनिटी है, वो हर वक्त रेडी होती है टू ओन समथिंग। ओवर हेयर यू आर सेइंग कि मैं एक बिजनेस बनाने जा रहा हूं और मुझे पैसे चाहिए, उसके अगेंस्ट में मैं आपको ओनरशिप दूंगा, ऐसे ही है। तो परफेक्ट मैच है। तो आप गए कम्युनिटी के पास, जिसको क्राउड फंडिंग भी कहते हैं,
आपने बोला जी ये मेरा आइडिया है डिजिटली, मेरा ये कॉन्सेप्ट पेपर है, मेरा ये इसका बिजनेस प्लान है, और आप कम्युनिटी के पास जाते हैं और कम्युनिटी से फंड रेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडिशनल वेब 2 में आपने देखा होगा स्टार्टअप एक्सीलरेटर आ गया, पिच आ गया कि जी इन्वेस्टर आए हुए आए जी पिच करें अपना पैसे मिलेंगे, ऐसे ही होता है ना, स्टेज पे चढ़ा देते हैं, ताली बज जाती है और आप शॉर्टलिस्ट हो गए और इन्वेस्टर ने बोल दिया ओके मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, हो गया ये। इस रूम से जब आप बाहर निकलेंगे दोनों खाली, पैसे पैसे हो तो गए, कमिट मिलेंगे मिले नहीं, क्योंकि देयर इज नो वे कि वो इंस्टेंटली कुछ दे सके आपको, इस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सके। वो ट्रांजेक्शन क्लोज नहीं होती, वो जाता है फिर वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा, चलाएगा। अच्छा इसमें भी ड्रॉप आउट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 10 जो कमिट हो जाती हैं उसमें सिर्फ एक फुलफिल होती है या 2 फुलफिल होती हैं इस गैप की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो वे कि वो उस वक्त, अब वो आया हुआ है अमेरिका से, इधर आया हुआ है कि वो उसको पसंद आ गया, उसके पैसे भी हैं, पर लीगली और टेक्नोलॉजी की ना होने की वजह से वो उस वक्त इंस्टेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, उसमें टाइम लगता है। तो इसका ये है कि जब आप कोई कंपनी बनाते हैं तो आपने कंपनी बनाई और उसका एक एनएफटी बनाया, उसके एसेट्स को फ्रैक्शनाइज कर दिया, आपको जितने भी फंड चाहिए कम्युनिटी से, ठीक है, उसका आप शेयर बनाएंगे और उसका पर यूनिट आपका एक एनएफटी है, उसको यूनिट में गिरा देंगे जैसे शेयर होता है, और एक एनएफटी आपके उस यूनिट के बराबर है। तो आप बोलेंगे जी मैं 10,000 एनएफटी इशू कर रहा हूं और एक एनएफटी $10 की है, तो मेरा ये रेज आ गया। तो आई एम लुकिंग फॉर पॉसिबली 10,000 इन्वेस्टर्स और 1,000 इन्वेस्टर, हो सकता है 1,000 बंदा या 100 बंदा आपका 10,000 यूनिट ले ले, क्या हो सकता है हर कोई एक एक ले, 10,000 यूनिट आपके एनएफटीज की सूरत में चले जाए। बट द ब्यूटी इज के जब वो आपका वो पढ़ लेगा और उसने कमिट कर लिया कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाट ही हैज टू डू, उसको सिर्फ अपना एक वॉलेट जिसके अंदर डिजिटल करेंसी उसको कनेक्ट करना है और उसको बाय करना है, इन्वेस्टमेंट आपके पास रियल टाइम पे आ जाएगी, वो दुनिया में कहीं पर भी हो, ठीक है। वो आपको डिजिटल डॉलर के अंदर में आपके एनएफटी परचेस करके आपके पास वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, क्योंकि ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर चल रहा होता है ट्रांजेक्शन जो होती है, ठीक है। तो वो ट्रांजेक्शन रियल टाइम में आपका जो ट्रेजरी का अकाउंट जो आपने कंपनी बनाया है वो उसके अंदर आ जाएगा। तो वेब 3 में आपने पहले वेबसाइट बनाई, वेब 3 के अंदर उस तरह आपने सारी चीजें डाली, और फिर आपने एक बनाई जिसको बोलते हैं वेब 3 में कंपनीज नहीं होती, उसमें कहते हैं डाओस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो आपको एज ए डाओ रजिस्टर करना पड़ेगा कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मींस क्योंकि आप अपनी कंपनी की ओनरशिप दे रहे हैं एनएफटी की सूरत में रिटेल को, पब्लिक को, ठीक है, आप सिर्फ डेवलपर हैं इस कंपनी के, ठीक है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ जिसको बोलते हैं फाउंडर या सेठ साहब इन वेब 3, नोबडी कैन कंट्रोल, जैसे मैंने बताया ना डिसेंट्रलाइज है, कंट्रोल से फाइट है, ठीक है। तो आपको न सिर्फ अपनी इक्विटी देनी पड़ेगी पर आपको डाओ बनानी पड़ेगी, दैट मींस उस कंपनी को जो चलाने की जो गवर्नेंस है वो भी कम्युनिटी के पास है, आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ जो एज ए डेवलपर आपके पास 10% शेयर या जो भी परसेंट आपने रखा हुआ है उतने ही वोटिंग राइट्स हैं, बाकी वोटिंग राइट्स भी आप एनएफटी के साथ शिफ्ट करते हैं टू द कम्युनिटी। इसका मतलब यह है कि जब आप इसकी डेवलपमेंट करेंगे तो डाओ की, तो वो आपको बोलेगा कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन ब्लॉकचेन के अंदर डिजिटल गवर्नेंस को इनेबल करना पड़ेगा। डिजिटल गवर्नेंस का मतलब यह है कि इस कंपनी ने अपने इनिशियल आइडिया को इंप्लीमेंट किया, अब वो कोई नई चीज लाना चाहती है, चाहे एक्सपेंड करना चाहती है, कोई प्रोडक्ट लाना चाहती है या प्राइसेस बढ़ाना चाहती है, वो फैसला कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उसका आपको डिजिटल वोट करना पड़ेगा कम्युनिटी से। इसके ऑपरेशन इस तरीके से चलते हैं कि जी हम कंपनी के लिए ये सोच रहे हैं, तो प्रपोजल तो दे सकता है डेवलपर एज अ डेवलपर, आप उस पर फैसला लेने के मजाज नहीं है खुद 100%। आपको जो आपके ओनर्स हैं जिन्होंने फंड दिया था, अब जारी बात है आप के हो सकते हैं कि आपके 100 कंट्रीज में आपके इन्वेस्टर्स हों इसमें, तो आपको फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो आप वो प्रपोजल्स बनाते हैं कंपनी के बिहाफ पर एज अ डेवलपर और उसका एक डिजिटल वोटिंग कराते हैं। अगर वो डिजिटल वोट उस प्रपोजल के हक में आता है तो वो आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो नहीं करते।
तो डिजिटल गवर्नेंस भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज और जो इसकी कंपनीज हैं उसका एक मैंडेटरी हिस्सा होता है, ठीक है, बिकॉज अदरवाइज उसके अलावा आप उसको गवर्न नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद यह है कि इसके अंदर नाउ यू हैव द पावर कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, उस आइडिया में जान है, आप उसका अच्छा डिजिटल कंटेंट क्रिएट करें, उसकी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग करें और आप क्राउड फंड रेस करें एनएफटीज इशू कर वन ऑफ द वेज है कि एनएफटीज इशू करके, ठीक है। इसके अलावा तो कॉइन्स भी होते हैं। मैं थोड़ा कॉइन और क्रिप्टो को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कुछ रीजंस। तो अदरवाइज इसका आईसीओ भी होता है, एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जैसे आईपीओ होता है कंपनी का, इसी तरीके से इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की टर्म्स होती हैं इसकी। कि आप एनएफटी नहीं, आप बोलेंगे जी मैं ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स इशू कर रहा हूं, तो कंपनी की जितनी वर्थ है उसके हिसाब से आप कॉइन्स इशू करते हैं और जो कॉइन्स आपके ओन करते हैं, परचेज करते हैं, वो उस हिसाब से उसकी ओनरशिप रखते हैं। तो दीज आर वेज टू रेज फंड्स, डिजिटल एसेट्स के फंड फ्रॉम द कम्युनिटी। इन रिटर्न यू विल ट्रांसफर टू थिंग्स, इक्विटी, जो उतना ओनर होगा उसका उतना शेयर बनेगा, और दूसरा गवर्नेंस के राइट्स, ठीक है। तो अगेन प्रिंसिपल्स को, अच्छा इसमें अब बहुत सारे लोग शायद इस क्लास के बाद, इस लेक्चर के बाद जाएंगे, तो वो बोलेंगे कि खुरम भाई ने तो ये चीज़ बोली थी पर रियल में तो ऐसा नहीं हो रहा, रियल में तो फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे इसलिए क्लोज कर दूं कि देखें, हर चीज़ में अच्छा बुरा तो हर चीज़ में होता है। हमने जो बातें आज डिस्कस की, ये प्रिंसिपल्स ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज हैं। कोई इन प्रिंसिपल्स को तोड़ रहा है, वो उसका कसूर इस टेक्नोलॉजी का नहीं है। कोई उसके फ्रॉड में आ रहा है तो वो उसका कसूर है कि उसने सही नॉलेज नहीं ली है कि मुझे कैसे ड्यू डिलिजेंस करनी है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? इंटरनेट है, इंटरनेट मिसयूज भी होता है, सही तरीके से यूज भी होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी हम नहीं कह सकते कि ये टेक्नोलॉजीज या ये पीसीज हैं ये मेच्योर हो चुकी हैं, मेच्योर नहीं हुई है, ये तो भी बहुत अर्ली हैं। अगर आप इसको सुन रहे हैं तो यू माइट बी 2% of the global population who is able to listen and talk about blockchain and NFT. ये इतना अर्ली है अभी इसके अंदर दुनिया, ठीक है। तो इट्स अ वेरी ग्रोइंग काइंड ऑफ एरिया, ठीक है, बट इसके अंदर फ्यूचर बहुत है, ठीक है। अब आखिरी चीज में आ जाते हैं, तो उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, मेटावर्स, ठीक है। तो फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया जी, हम मेटा हैं अब, और फेसबुक टाटा बाय बाय, ठीक है। तो मेटावर्स क्या है कि आज आप जितना भी कंटेंट देख रहे हैं दुनिया में, ठीक है, वो वीडियो तक महदूद है। वीडियो से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वीडियो की डिफरेंट टेक क्वालिटीज़ होंगे, HD, सुपर HD, एक्समॉल, पता नहीं क्या क्या, एक्सेस, जो भी कर लो, तो है वीडियो। हैवी कंटेंट इज वीडियो, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। मेटावर्स आपको अब नेक्स्ट एवोल्यूशन में लेके जा रहा है, विच इज मिक्स रियलिटी, ठीक है। मिक्स रियलिटी इज व्हाट? समथिंग विच इज मोर देन वीडियो एंड लिटिल लेस देन रियल लाइफ, बिटवीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका सिर्फ यूज केस ये है, मैं यूज केस पे रखूंगा, मैं इसको ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर फिर क्वेश्चंस बहुत आने लग जाते हैं, ठीक है, कि यार क्या हम उधर ज़िंदगी गुजारेंगे, उधर खाना खाएंगे, क्या करेंगे, तो उस पर अभी नहीं जाना है, इतना टेंशन नहीं पालना है। आप लोगों को ये समझना है कि रियलिटी ज़रूर है, क्योंकि फेसबुक और इनकी नेचुरल ट्रांजिशन होनी है। अब हम वीडियो देख देख के थक गए, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि इसका कमर्शियल एंगल भी है। अगर तो वीडियो रहनी है ना, कोई भी इनोवेशन जो है ना वो किसी कमर्शियल एंगल के बगैर नहीं आती है, याद रखिएगा। हमें लगता है इनोवेशन हो गई है, इनोवेशन नहीं हो, किसी टेक्नोलॉजी, किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए आती है। तो अगर तो वीडियो पे हमें रुक जाना है दुनिया को, तो 5G इज इनफ, मैक्सिमम 6G इज इनफ। तो ये जो एलन मस्क स्टारलिंक बना रहा है ना, ये बोल रहा है कि तो वो फिर बैंडविड्थ कंज्यूम ही नहीं होगी, उसका जस्टिफिकेशन ही नहीं होगी। तो देयर हैज टू बी समथिंग जिसकी रिक्वायरमेंट हो कि बैंडविड्थ बढ़े, ये इसका कमर्शियल एंगल है, हमेशा याद रखिएगा।
तो व्हाट इज दैट, और उसके साथ जारी बात है एक नेक्स्ट लेवल है। तो इसका यूज केस क्या है कि आज अगर मैं दराज पे जाता हूँ या और मैं शूज लेता हूँ तो COD, पाकिस्तान में 95% क्या है, कैश ऑन डिलीवरी। उसका रीजन क्या है, यार मैं चीज देखूंगा पहले, एक्सपीरियंस करूंगा। इसको एड्रेस करता है मेटावर्स। अब आप अगर आप मेटावर्स के अंदर वेब 2 में जाते हैं, देयर इज नो वे कि आप दराज पे जो मोबाइल जा रहे हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकें रिमोटली। तो अगेन मैं बात कर रहा हूँ मिक्स्ड रियलिटी, मैंने वर्ड यूज किया है, मैंने AR VR नहीं यूज किया, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल वो जो जूता है या कोई आप परचेज कर रहे हैं, मोबाइल कर रहे हैं, वो अचानक से आपके हाथ में आ जाएगा लैपटॉप से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट यस, वो वीडियो से बेहतर होगा, ठीक है। तो मे बी आप होलोग्राम की सूरत में अपने लैपटॉप से ये ज़रूर फील कर सकेंगे कि शायद अगर आपने टच किया और वो मोबाइल निकल के होलोग्राफ टेक्नोलॉजी की वजह से, वेब की वजह से वो सामने उसको आप घुमा फिरा के देख सके चीज़ों को, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है, जैसे इसकी नेक्स्ट स्टेज ज़रूर है, पर वो इस तरह से वो आम बंदे की रीच में नहीं होगा। फिर ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप लैपटॉप और मोबाइल पर क्या एक्सपीरियंस करेंगे इसका। यस, फिर इसकी एक नेक्स्ट एडिशन है, एडवांस एडिशन है, जिसके अंदर कुछ गैजेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके अंदर है कि फिर आपका घर होगा, उधर आपका पेट होगा, उसको आप नहला सकेंगे तो फील कर सकेंगे हालांकि आप अपने घर में हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्पेशल गैजेट्स पहनने पड़ेंगे, वो जो आयरन मैन मूवीज वगैरह आपने फिक्शन की देखी होगी। तो मेटावर्स को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक मूवी है रेडी प्लेयर वन, ठीक है। तो वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हुआ है। पूरी मूवी मेटावर्स के ऊपर है कि फ्यूचर में लाइफ किस तरीके से गुजरेगी, मेटावर्स में लाइफ किस तरीके से गुजरेगी। उस मूवी को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो भी आप उस मूवी में देख रहे हैं, याद रखिएगा कि वी आर ऑन देयर, हम पहुंच चुके हैं उधर तक। उस मूवी को देख के ये नहीं समझिएगा कि ये कोई 20 साल की बात पाने वाली है। ये आप अगले 4-5 साल में यू विल ऑल स्टार्ट वॉट एवर इज हैपनिंग, एटलीस्ट 50 to 60% उस जो मूवी में आप देखेंगे आप रियल लाइफ में स्टार्ट कर लेंगे, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो या कोंगो में बैठे हो, ठीक है। दैट्स द नेक्स्ट ट्रांजिशन विच इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम भी कम हो गया है, तो मेरा आखिरी मैसेज सिर्फ आपके पास ये है कि मैंने 20 साल में से 10 साल बैंकिंग की नौकरी की थी और बहुत अच्छी नौकरी की थी। मैंने 2 साल पहले छोड़ा। वो इसका रीज़न था, उसका रीज़न ये था कि जैसे मैंने बताया कि जो 2000 का बबल पाकिस्तानियों ने मिस किया और हमें कोई मेंटोर्स नहीं मिले थे, हमें कोई समझाने के लिए था ही नहीं जिसने रियल वर्ल्ड में कुछ चीज़ें की हों। तो मैंने तो अपने साथ ये फैसला किया था कि यार बहुत कर लिया, मुझे कम्युनिटी को वापस करना है, मुझे बच्चों के साथ टाइम गुजारना है। और पिछले 2 साल से मैं ना बैंकर से मिलता हूँ ना प्रोफेशनल पे जाता हूँ, मैं सिर्फ यूथ को एड्रेस करता हूँ, ठीक है। पूरे पाकिस्तान लेवल पे मैं करता हूँ और मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझाता हूँ। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास ये सब लोग कहते हैं यार मादनियात हैं और हमारे पास सब कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने देखा नहीं। पर मेरा ये बिलीव है कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बड़ा एसेट है वो यूथ है। इसके अलावा हमारे कंट्री में होगा कुछ ज़मीनों के नीचे, आई डोंट नो, बट ये सबको नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आप ये यकीन कर लें कि जो चीज़ अमेरिका में बैठा हुआ बंदा कर सकता है वो आज एक्सेस अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आप भी कर सकते हैं। हम सिर्फ सीरियस हो जाएं अपने साथ, हर इंडिविजुअल सीरियस हो जाए और हम अगर इस चीज़ को समझ लें। देखिए हमारी कंट्री नहीं चल सकती, जैसे मैंने बताया, जिस कंट्री के अंदर हमारे पास हो कि जी लड़कियां काम नहीं करेंगी, तो 50% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। फिर मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, 22 साल के बाद नौकरी करेगा, तो 22 साल ये भी कट कर लें आप। फिर हमारे बुजुर्ग, ये तो सीनियर सिटीजन है, तो बच्चा कौन? यार एक कंट्री कैसे चल सकती है जिसकी 70% पॉपुलेशन को अलाउ ही नहीं किया जाता कंट्रीब्यूट करने के लिए, सिर्फ 30% ये कंट्री को आगे नहीं लेके जा सकती। दुनिया में अब ये खत्म हो गई चीज। फेसबुक हो गए, गूगल हो गए। अगेन मैं रिपीट करूंगा, मैंने पहले स्टार्ट किया था, किताबें पढ़नी चाहिए, वोकैबुलरी बढ़ती है, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, वो कहीं नहीं जा रहा, वो स्कूल में आना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए।
पर अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, किताबें आपको वो स्किल्स नहीं सिखा सकती जो रियल वर्ल्ड की स्किल्स होती हैं। और दुनिया ने अब ये फैसला कर लिया हुआ है, हमें करना है। दुनिया में तो 12 साल का बच्चा भी कमा रहा है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, वो गेम खेल के भी कमा रहे हैं, क्योंकि वो बचपन से अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और इकोनॉमी और उसको सिखाते हैं। हम लोग 22 साल तक, मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहना, पढ़ रहा है अभी वो, बाप तुम्हारा जिंदा है ना भाई, बाप अल्लाह करे पूरी जिंदगी जिंदा है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चाहे आप अपनी कैरियर में कहीं पर भी हैं, एज में कहीं पर भी हैं, ये मोबाइल आपके पास, सबके पास है। इस मोबाइल को एंटरटेनमेंट डिवाइस खुदा के लिए ना समझें। ये एक इकोनॉमिक डिवाइस है, इसको इकोनॉमी के लिए भी यूज़ करें। दिन में आधा घंटा 1 घंटा गूगल के साथ लगाएं। जब मैंने फैसला किया कि मैं इस एंगल पे आऊँगा, तो मैंने बोला यार यूनिवर्सिटी में कोर्स पकड़ लेते हैं, तो था ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटीज ऑफर ही नहीं कर रही आज से 7-8 साल पहले। मैंने कहा चलो कोई सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, तो नहीं हुआ। फिर आखिर मैंने फैसला ये किया पैसे डाल देता हूँ, पैसे डलेंगे तो उसको बचाने के लिए सीख लूँगा। तो मैंने तो इसकी कोई डिग्री नहीं ली है, मैंने गूगल, यूट्यूब पैसे डाल के चीज़ें करके इसी तरह सीखा है। मुझे आज भी याद है, पहले दिन जाके मैंने लिखा था कि भाई ये जो है डिजिटल अकाउंट कैसे खोलते हैं, गूगल पे लिखा था, उसने मुझे समझाया था, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो लग गए 3 साल सीखने में, पर मैं सीख गया। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। गूगल बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर सारी चीज़, यूट्यूब है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो देख लें, कॉमिक वीडियोस भी देख लें, प्रैंक्स भी देख लें, नो इश्यूज, वो भी देखना चाहिए। पर इसकी तरफ भी सोचें। और ये हमेशा अपना याद रखें कि आप लोग जब डॉलर कमाएंगे तो पाकिस्तान का उसके अंदर फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमी जा रही है, आप ऐसा नहीं हो सकता पीकेआर में करके और डॉलर को खाने दे दें अपना पीकेआर। ठीक है, यही होता है ना फाइनेंशियल सिस्टम में, रिसेशन हर 10 साल के साथ, अब तो स्पीड तेज़ हो गई है, हर 10 साल के बाद रिसेशन आ जाती है। वो रिसेशन आती है जो आप और मैंने जो मेहनत से कमाए होते हैं ना पैसे, उसको 50% करने, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तो वी हैव द पावर, वी हैव द यूथ, वी हैव द स्किल्स, उस स्किल्स को पॉलिश करके सही तरीके से यूटिलाइज करें। आप किसी भी फील्ड में हो, आप उसके अंदर टेक्नोलॉजी को जरूर लेके आए, वही आपको ग्लोबल बनाएगी। अब वो ग्लोबल ज़माने ख़त्म हो गए कि जी ऑफिस खोलनी है, ये खोलनी है। आप यहाँ पे बैठ के ग्लोबली ऑपरेट कर सकते हैं और आप ग्लोबल अपनी चीज़, प्रोडक्ट को पहुँचा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें बताया जाता है तुम पाकिस्तानी हो, तुम बड़ा नहीं सोचो। भाई क्यों नहीं सोचें? एक इंडिविजुअल भी आज कंट्रीब्यूट कर सकता है और ग्लोबली ऑपरेट कर सकता है। ये बाउंड्रीज और ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी। और आप में से कुछ लोग मुझे नज़र भी आ रहे हैं, अपने बच्चों को प्लीज़, आप अगर उनको पैसे कमाने के लिए, आपके कोई भी रीजंस हो सकते हैं उसके कि यार नहीं, बट दुनिया अब चेंज हो चुकी है। बच्चे जो आज वो कर रहे हैं उनको करने दें, स्कूल की पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, वो दें, पर आज वो कर रहे होंगे काम, पर उसमें उनको दें, वो बहुत कुछ सीखेंगे उससे। अपने बच्चों को अलाउ करेंगे वो अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करें और शोकेस करें और उससे अर्न करें। कोई मजायका नहीं है कि 12 साल का बच्चा अर्न कर रहा है, फख्र होना चाहिए हमें। वो जमाने खत्म हो गए अब। दैट इज द ओनली वे। हमारी क्या पॉपुलेशन है? 60%। तो 30 से नीचे, फिर 30 से नीचे में करूंगा, 22 से नीचे करूंगा, तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो ये मेरा मैसेज है कि आप, अब दुनिया इसमें जा रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है। सब कोई, फैमिली के 5 मेंबर हैं तो 5 के 5 मेंबर किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करना चाहिए। हमारे कल्चर है कि हम अपनी लेडीज़ के लिए हैं, तो घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है यार, घर में बैठ के बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, अर्न किया जा सकता है। अगर डॉक्टर है, फैमिली आए पे उसने डॉक्टर की डिग्री की हुई है, सुबह बच्चे चले गए, अब वो ड्रामा देख रही है, वो भाई स्टार्टअप है सेहत का, नहीं वहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेंसी कर लें, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब तो वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। अब तो रिमोट, कोविड ने ये भी सिखा दिया ना, वर्क फ्रॉम होम, तो उसका फ़ायदा उठा लें चलें। तो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू कंट्रीब्यूट, नीड्स टू बी इंकरेज्ड। ठीक है, कोई बंदा, अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरे घर में मेरे बच्चे गेम खेलते हैं, मेरी बेगम के साथ लड़ाई होती थी, अब उसको रियलाइज़ हो गया नहीं भाई गेम भी बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है,
हाँ वो अपना ज़रूर है कि एक स्क्रीन टाइम होना चाहिए, वो सब चीज़, पर गेम को बुरा ना बोलें। क्या तुम गेम पे वक्त ज़ाया कर रहे हो? नहीं कर रहा, वो स्किल सीख रहा है उस पर भी। आज है ना वो हमारे पास, आप पता नहीं आप में से कितने लोगों ने नहीं देखा, जो पाकिस्तान का, जो दुनिया का सबसे टॉप, वन ऑफ द टॉप जो गेमर है वो पाकिस्तान से। हम जब तक कंबाइन नहीं कमाते वो कमा लेता है एक टूर्नामेंट से, कैरियर है। ठीक है, तो लेट देम एक्सप्लोर, वॉच जरूर करें, और तभी होगा जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे। क्योंकि आखिरी मैसेज में इसमें दूंगा कि इसकी गवर्नेंस है, इसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दुनिया अच्छी भी है, पर अगर पेरेंट्स को नहीं पता होगा, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो आप कैसे गाइड करेंगे उधर? तो आपको ये भी मालूम करना है कि उधर सही तरीके से पेरेंटिंग कैसे की जाए, डिजिटल पेरेंटिंग कैसे की जाए। तो चाहे आप वो करना चाहें या नहीं करना चाहें, यार मुझे तो डिजिटल कंप्यूटर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मोबाइल कभी यूज़ नहीं किया, पर डिजिटल पेरेंटिंग भी एक स्किल है जो सीखनी पड़ेगी एज ए माशरा हमें, नहीं तो फिर कुछ दूसरे इश्यूज भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आप माइक खोल दें, उनका आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, वेब 3 की जो टोटल अब इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, और इसकी केस स्टडी अगर आपको देखनी है तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा नाइकी लैंड। ठीक है, NIKE स्पेस लैंड, इसको सर्च कर लीजिएगा। तो बेसिकली नाइकी ने पिछले 6 महीने पहले डिसाइड किया कि हमारे रिटेल आउटलेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, अब हम अपना जो नया आउटलेट खोलेंगे वो मेटावर्स में खोलेंगे। तो उन्होंने 6 महीने पहले मेटावर्स के अंदर, डिसेंट्रलैंड के अंदर और सैंडबॉक्स के अंदर, ये दो मशहूर मेटावर्सेज हैं, उसके अंदर उन्होंने अपना स्टोर खोला। ठीक है, तो अभी उनके रिसेंटली नंबर आए थे कि 6 महीने के अंदर जो फुटफॉल आया है उधर उस एक स्टोर के ऊपर 21 मिलियन का है। वो बोल रहे हैं ये फुटफॉल हमारे पूरी दुनिया के जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं और हमारे वेब की जितनी प्रेजेंस है कंबाइंड से ज्यादा है। ठीक है, तो अब वहां पे एक्चुअल कॉमर्स हो रहा है। नाइकी लैंड के अंदर उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव चीजें भी दी हुई हैं, NFTs भी दी हुई हैं, स्टोर भी दिया हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आज आप ई कॉमर्स में जब शॉपिंग करते हैं वो 2D शॉपिंग एक्सपीरियंस है, उधर मिक्स रियलिटी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो उधर आप अगर शूज़ ले रहे हैं तो उसको ट्राई भी कर सकते हैं। आप नहीं ट्राई करेंगे, आपका एवेटार ट्राई करेगा, पर आपको वो पता चल जाएगा कि वो शूज़ क्या है, वो कैसा लुक एंड फील कर रहा है, साइज़ क्या है उसकी, सही है नहीं है, उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो कॉमर्स को नेक्स्ट स्टेज पे ले गए जहाँ पर कस्टमाइजेशन, और जो वो एक बहुत बड़ा Web 2 के अंदर कॉमर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हम वो फील नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को देख नहीं सकते, तो वो थोड़ा हद तक वो रिजॉल्व करती है मिक्स्ड रियलिटी। तो इस वजह से उधर उनके पास बहुत ज़्यादा फुटफॉल आया है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो ये एक जैसे कि मैंने बताया कि अभी नई चीज़ें, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ, जब उन्होंने एक स्टोर खोला और उधर वो एक्चुअल ट्रेड कर रहे हैं, तो उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज करके वो स्टोर किया। दैट मीन्स वो ब्लॉकचेन बनाया, 3D स्पेस बनाई, उसके अंदर AR VR भी आ गया, फिर उन्होंने उधर NFTs रखी तो NFTs भी आ गया, फिर उन्होंने टोकन डिजिटल करेंसीज बोलेंगे जी ये डिजिटल करेंसीज चलेंगी, तो करेंसीज भी उन्होंने ऐड कर दी। सिर्फ डेफी के अलावा चारों कंपोनेंट्स उन्होंने लगा के उनका स्टोर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया ना, ये चारों चीज़ें बन के ही, कहीं पर 3 चीज़ें लगेंगी, कहीं पर 2 चारों चीज़ें लगेंगी और आपका अल्टीमेट Web 3 का एक्सपीरियंस बनेगा। अस्सलाम वालेकुम
सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, वो ये है कि जो भी मेटा ने बीच में मेटावर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया था और इसमें मेटा ने उसको बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कन्वर्ट कर दिया था, तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उससे ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। तो जब भी आपने बताया कि नोड्स वगैरह की वजह से सिक्योरिटी काफ़ी हाई है इसकी, तो इसमें जब इस तरह के नुकसान होते हैं तो फिर किस तरीके से सिक्योर रहेगा रियल वर्ल्ड में? अच्छा, देखिए मेटा की जो अनाउंसमेंट थी वो उसका क्रिप्टो करेंसी से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। मेटा ने अनाउंसमेंट क्या की थी, मेटा का जो ज़्यादा फोकस है वो ये है कि क्योंकि वो वेब 2 में फेसबुक चला रहे हैं जो कि एक 2D प्लेटफॉर्म है जिसपे आज आप और हम सारा एक कम्युनिटी बेस्ड सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि अब हम फेसबुक को ख़त्म कर रहे हैं और मेटा कंपनी का नाम कर रहे हैं क्योंकि हम अपना एक मेटावर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन। तो उन्होंने बोला अब आप जैसे फेसबुक पे टाइम गुजारते हैं और सोशलाइजेशन करते हैं, अब आप मिक्स्ड रियलिटी में हमारा प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन, जो उन्होंने अमेरिका और कनाडा वगैरह में लॉन्च किया हुआ है, अभी पाकिस्तान में नहीं आया। तो उन्होंने बोला था कि आप उसमें जाके, तो फेसबुक एज वी सी टुडे आफ्टर सम टाइम, जो उन्होंने 2030 की टाइमलाइन दी हुई है कि फेसबुक विल डाइल्यूट और आप फिर फेसबुक की जगह इंगेज करेंगे हॉरिजॉन के अंदर, जो कि एक मेटावर्स है, जो एक मिक्स्ड रियलिटी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे जैसे आज आप वेब 2 में करते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लॉकचेन के अंदर आज तक कोई प्रूवन केस नहीं है कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ब्रेक करके उसका हैक हुआ है। फ्रॉड्स हुए हैं और उसकी परसेप्शन ऐसे आती है कि हैक हो गया। जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं, अभी मोस्ट रिसेंटली जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था वो टेरा लूना एक प्रोजेक्ट था उसका हुआ था, उसमें भी अगर आप देखें तो उसमें टेक्नोलॉजी को ब्रेक नहीं किया गया था बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी उनके कंपटीशन की तरफ से, बाइंग सेलिंग की प्रेशर की वजह से उसको गिराया गया था, ठीक है। तो ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ था। किसी ने ये नहीं बोला कि जी टेरा लूना की प्राइस ड्रॉप हो गई थी, प्राइस ड्रॉप ये हुई थी कि कोऑर्डिनेटेड सेल हो गया था, जिनके जो टेरा लूना की जो मेजॉरिटी शेयर्स थे वो उनके कॉम्पिटिटर्स ने उनसे लिए हुए थे, एक लंबी स्टोरी है, उन्होंने सेल कर दिए, उन्होंने डंप कर दिए। इसी तरीके से कि अगर आज किसी बैंक के पास उसके डिपॉजिटर्स चले जाए और बोले हमारा सारा डिपॉजिट वापस कर दो, जिसको बोलते हैं बैंक रन, किसी बैंक पे डिपॉजिट रन हो जाना, ठीक है, तो वो कलेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो देयर हैज बीन केसेस जहां पे टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रही है, बट ज्यादातर मैनिपुलेशन हुई है। फॉर एग्जांपल किसी ने एक फेक साइट बना के आपका जो डिजिटल अकाउंट है उसने बोला जी आप इधर ये इन्वेस्ट करें और ये आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और आपने अकाउंट लगा के उसको कनेक्ट कर दिया उनके साथ और उस कनेक्शन के बेस के ऊपर उसने आपके अकाउंट से निकाल दिया पैसे। इसी तरीके से कि आप आज आकर मैं आपको फ़ोन करके जो हमारे पास होता है कि जी आपकी पिन बता दें और OTP बता दें, तो मैन्युअल ह्यूमन मैनिपुलेशन होती है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ नॉलेज या लालच, ठीक है। टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन की आज तक उस तरीके से ब्रेक नहीं हुई जिस तरीके से हमारे इधर दुनिया में वेब 2 की टेक्नोलॉजीज ब्रेक हो जाती हैं, उसके अंदर ह्यूमन मैनिपुलेशन ज़्यादा होंगी। अस्सलाम वालेकुम खुरम, गुड टू सी यू आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स। अच्छा, एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, सिंस जितना टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, जितना हम इन्हांस होते जाते हैं, हमारी सिक्योरिटी इतनी वल्नरेबल होती जाती है। विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉकचेन, अब इसकी सिक्योरिटी आपने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है ना इसको ब्रेक नहीं कर सकती, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, हाउ कम इट इज़ बेसिकली नॉट बीन यूटिलाइज बाय द बैंक्स और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या अदर दूसरे डिफरेंट, हम उसको क्या कहते हैं अपना टेक्नोलॉजीज में वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं? और क्या इसके यूज़ केसेस क्या दूसरी और वर्ल्ड में यूज़ हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो गया, या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो गया। देखिए इसकी ब्लॉकचेन के यूज़ केस हर टेक्नोलॉजी हर सेगमेंट के लिए हैं। ये अंदर जैसे हमने कुछ केसेस रियल एस्टेट के डिस्कस किए, और इसी तरीके से आप जिसको भी मैप करेंगे इस टेक्नोलॉजी के यूज़ केसेस, तो हर सेगमेंट के लिए इसके अंदर सपोर्ट मौजूद है। क्यों नहीं हो रहे या क्यों नहीं एडॉप्शन हो रही, आई थिंक आई वुड से कि उसके अंदर प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट विल पर
जो प्रॉब्लम है वो ये है, मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने एक जुमला यूज़ किया था कि ये जो सिस्टम बनाया गया था, ये बेसिकली दिस इज़ अ सिस्टम जिसको बनाने के अंदर एक कुछ लोग नाराज़ थे इस सिस्टम से, जो सेंट्रलाइज सिस्टम है दुनिया का बना हुआ। उन्होंने इस सिस्टम को उस तरीके से बनाया है जो आज सेंट्रलाइज सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जब आप बैंक की बात करते हैं, बैंक उस सिस्टम का एक इंटीग्रेट पार्ट है। तो गवर्नमेंट्स भी इसी तरीके, इस वजह से इसको रेजिस्ट कर रही हैं, जो कि अब आपने देखा होगा पिछले 6 महीने के अंदर अब अमेरिका ने भी अलाउ कर दिया, इंडिया ने भी अलाउ कर दिया, तो अब धड़ाधड़ रेगुलेशंस आ रही हैं, दुबई ने, सब इसको अलाउ करते जा रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने समझ लिया है कि अब हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इसकी इकोनॉमी हो गई है। पाकिस्तान में इसके आप हैरान हो जाएंगे कि जब मैं इस मिशन के लिए निकला था तो मैंने बोला था यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर सरप्राइजिंगली जब मैं गया तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि हमारा यूथ और पाकिस्तानी बहुत कर रहे हैं। पाकिस्तान में 15 मिलियन से ज़्यादा लोग क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं, जिसकी मोर देन $20 बिलियन का डिपॉजिट है। सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में $15 बिलियन से ज़्यादा की रेमिटेंसेज आई हैं क्रिप्टो के थ्रू पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, क्योंकि रेट ज़्यादा थे उधर, आपको पता है डॉलर बहुत वॉलेटाइल हो गया था, तो लोग $5 भी ज़ाया नहीं करना चाहते अपने। तो अब प्रॉब्लम सिर्फ क्या आ रहा है गवर्नमेंट्स के साथ, जो आखिरी पॉइंट है वो यही है कि कंट्रोल, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट हो या कोई सेंट्रलाइज बॉडी हो या बैंक्स हो, वो सेंट्रलाइज सिस्टम में रेगुलेटर हो, ये क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स ये हैं कि ये कंट्रोल अलाउ नहीं देती किसी को, तो ये कभी भी सेंट्रलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है। तो उसके ऊपर अब चीज़ें चल रही हैं, कम्युनिटी बैठ रही है, कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जा रही हैं, तो जब तक फ्रेमवर्क नहीं आएगा बैंक उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल कंपनी तो पहले पढ़ना है, पहले रेगुलेटर को समझना है, पहले गवर्नमेंट को समझना है। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ स्पीड पकड़ी थी, पर अब आपको पता है आजकल के जो हालात हैं, तो मैं तो अभी 2-3 साल इसके डिले ही समझ रहा हूँ, पर दुनिया में अब इसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट किया जा रहा है। आपको पता होगा कुछ जो फाइनेंशियल में है कि फाइनेंशियल का जो सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर सिस्टम है स्विफ्ट के नाम से, जो पेमेंट का सिस्टम है, उन्होंने भी ब्लॉकचेन अडॉप्ट कर लिया है, वीज़ा ने अडॉप्ट कर लिया है, मास्टर कार्ड ने अडॉप्ट कर लिया है, बैंक्स बड़े बड़े जेपी मॉर्गन हो गए, बैंक ऑफ अमेरिका हो गए, वो सब कुछ ब्लॉकचेन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन नहीं है, अब सिर्फ टाइम का पता है कि कौन सी कंट्री कितना जल्दी इसके ऊपर आती है, बट ये रियलाइजेशन हो गई है कि अब नेक्स्ट वेव है और जो अडॉप्शन होनी है और ट्रांसफॉर्मेशन होनी है वो ब्लॉकचेन के ऊपर ही होनी है, चाहे वो बैंक्स हो, क्योंकि जब स्विफ्ट चला गया, वीज़ा चला गया, जब वो लोग जा रहे हैं तो बैंक्स को आना ही पड़ेगा। ठीक है, स्विफ्ट ने, जो आपको पता है सेंट्रलाइज सिस्टम है, उसने अनाउंस कर दिया है दुनिया में कि भाई इसके बाद मैं ब्लॉकचेन पेमेंट्स ही सपोर्ट करूंगा, दूसरी सब नहीं करूंगा। ठीक है, वो 8-10 साल लगेंगे उसके अंदर, बट 2030 वी सी के एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो लेंगे, जिसमें मेटावर्स भी एक आम बात हो जाएगी और जिसके अंदर ब्लॉकचेन भी एक आम हो जाएगा अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ठीक है, अभी कुछ कंट्रीज आगे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ बहुत आगे हैं, कुछ बहुत पीछे हैं, बट एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू मूव टुवर्ड्स इट, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर वेब 3 बनता है, वेब 3 इज इंटरनेट 3, तो उसको हम रोक नहीं सकते, वो एक नेचुरल एवोल्यूशन है, वो आनी है, इंटरनेट 3 आना है। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारी ख्वाहिश नहीं है, पर इसके अंदर बहुत सारे कमर्शियल्स भी इन्वॉल्व है पीछे लॉजिकली। ठीक है, अगर इंटरनेट 3 नहीं आता, ये मेटावर्स नहीं आता है, तो वो बैंडविड्थ नहीं कंज्यूम होती, और ये जो सैटेलाइटें भेजे जा रही हैं, तो ये सारा मिलकर एक चीज़ बननी है और इसकी अडॉप्शन अब होनी है। देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, आप माशरे में रहते हैं तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके आप इस माशरे में आए, जो हमारा आइन है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन का ये आइन है, विच इज़ कि ये ओपन लेजर है जी, आपको आना है इसके अंदर, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो ओपन लेजर, पब्लिक लेजर पे अवेलेबल है, तो आपकी वो इंफॉर्मेशन मौजूद रहेगी। यस, डेटा एनॉमनस डेटा होता है इसके अंदर, किसी को आपका आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी अनटिल अनलेस ही नोज कि आपका ये हैश आपको रिप्रेजेंट करता है बट वो ट्रांजैक्शन विजिबल होगी सबको, आपको भी होगी, मुझे भी होगी, कि ये ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के दरमियान हुई थी, इस चीज़ की हुई थी। वो मिस्टर एक्स और वाई वो एनॉमनस है, इसीलिए आज तक बिटकॉइन किसने बनाया था वो किसी को नहीं पता, किसी ने बनाया था, मिस्टर एक्स ने, उसने क्या बनाया था, और आज उसके पास कितने पड़े हैं ये भी पता है। आइडेंटिटी
ब्लॉकचेन के अंदर ना रिक्वायरमेंट है, हम सिर्फ आपको उस हैश के थ्रू जानते हैं, ठीक है। तो इसमें डेटा सिक्योरिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट आपका है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, और ब्लॉकचेन आपको ये कर रहा है कि मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा, पर आपकी इंफॉर्मेशन जो जितनी भी हो रही है वो अवेलेबल है टू एवरीबडी। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्री करके हम इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में आते हैं। जहां तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के मैं हमेशा बोलता हूं 2 एलिमेंट होते हैं। एक होता है टेक्नोलॉजिकल ब्रीच, वो इसके अंदर आज तक नहीं हुआ है, हुए हैं तो बहुत कम लेवल पर हुए हैं, और उसका मेन रीजन इसकी डिसेंट्रलाइजेशन ही है। क्योंकि 12 नोड्स जैसे मैंने आपको बताया, वो 12 नोड्स 12 कंट्रीज हो सकती हैं, और उसके अंदर जो क्रिप्टोग्राफिक फार्मूलाज लगते हैं उसको ब्रेक करना, तो हमारे पास वेब 2 में तो 16 हैश 14 हैश को ब्रेक नहीं कर सके, तो ये तो क्रिप्टो फार्मूलाज हैं, तो इसको ब्रेक करना नियर टू इम्पॉसिबल है। पहले तो आप वो 16 नोड्स को तक पहुंचे, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट होकर डेटा पड़ा होती है, एक जगह पे हैक नहीं करना पड़ेगा, 16 जगहों पे हैक करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज लेजर का मतलब ये कि अगर एक सेंट्रलाइज लेजर पे पहुंचे आप, तो आपको सब मिल गया। यहां पे जब आप अगर पहुंचे भी तो एक पर्टिकुलर पीस मिलेगा, और वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो डिवाइड होकर पड़ा हुआ है। तो आपको 16 नोड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जो 16 कंट्रीज में हो सकती हैं। तो सेंस ही नहीं बनता, कमर्शियल सेंस भी नहीं बनता उनके लिए जो इतनी मेहनत करूं मैं, ठीक है। टेक्निकली ये मैन्युअल मैनिपुलेशन होती है, जो किसी भी दुनिया में होती है। डुप्लीकेट साइट्स आ जाएंगी, आपको लालच आ जाएगी। तो मैंने आज तक जितने केसेस देखे, फेस पे उसको कुछ भी कहा जाए, पर मुझे उसकी रूट कॉज यही पता चली कि लालच ने मरवाया है। अगर लालच नहीं की होती तो बहुत सारे लोग बच सकते थे। तो वो जो ग्रीड जो है, ग्रीड की वजह से वो मैन्युअल मैनिपुलेशन के अंदर आए, कि एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी नहीं किया कि यार एक बंदा मुझे बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल 10% डेली रिटर्न दूंगा, आखिर कैसे, वो भूल गए हम, और हम चले गए और कुछ लिया भी, और फिर पैसा चला गया। तो ग्रीड को तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, ग्रीड के ऊपर आपको कितना भी लेक्चर दे दूं, मैं यही बोलूंगा कि ग्रीडी नहीं बनना। तो सिक्योरिटी टेक्निकली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ विच इट हैज बीन मेड, बट मैन्युअल मैनिपुलेशन इज देयर, वो किसी भी सिस्टम की तरह इसमें भी रह सकती। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट इमरान राशिद साहब, जो कि आईडी सब डिपार्टमेंट खोजा जमात के कन्वेयर हैं, कि आए और वोट ऑफ थैंक्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये एक्चुअली अटेंड करके काफ़ी खुशी हुई है। उसकी वजह यह है कि ब्लॉकचेन नई चीज़ नहीं है, काफ़ी पुरानी चीज़ है। इस पे काफ़ी लोग बोलते रहे हैं, चाहे ब्लॉकचेन के बारे में हो, चाहे NFT के बारे में हो, चाहे वेब 3.0 किसी और चीज़ के बारे में हो। मेरे ख़्याल से ओवर द लास्ट 6 months to a year 4-5 लोगों को मैंने बात करते हुए देखा है, एंड आई थिंक खुरम आई वुड गिव यू क्रेडिट कि इन 4-5 लेक्चर्स में से योर्स हैज़ बिन द क्लियरेस्ट सो फार इन गिविंग एग्जांपल्स ऑफ हाउ ब्लॉकचेन एंड NFT वर्क्स। एंड मुझे अच्छी बात ये लगी कि आपने ये भी मेंशन किया कि NFT का हम जो चीज़ें सुनते रहते हैं कि भाई वहाँ पे NFT में कोई इमेज आ गई, इमेज को बंदे ने कुछ $1 million का बेच दिया, यार ये कैसे करते हैं। अभी भी आप NFT के बारे में मार्केट में देखेंगे, लोग हायर कर रहे हैं NFT में इमेजेस डेवलपमेंट के लिए। तो आपने इस चीज़ को भी मेंशन किया, उसको को पर्पस मेंशन किया। आई थिंक ये चीज़ काफ़ी अप्रिशिएबल थी। थैंक यू। ओवरऑल माशाल्लाह जमात का मैं शुक्रगुजार हूँ। जमात ने ये 4th सेशन है। आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ अटेंडिंग 2 of the previous sessions। अनफॉर्चुनेटली पहला वाला मैं मिस कर गया था। एंड माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सेशंस हैं। इन्होंने काफ़ी एरियाज़ को टच किया हुआ है जो कि हम लोग कहीं और ज़िंदगी में टच नहीं करते, जहाँ पे इंफॉर्मेशन वाइज हमें कभी कभी एक्सेसिबल नहीं होता है, जो इंफॉर्मेशन वाइज हमें समझ नहीं आती। ब्लॉकचेन इज़ अ गुड एग्जांपल। इसके बारे में पिछले सालों से बात हो रही है, लेकिन कभी कभी आपको क्लैरिटी के लिए एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। एंड मैं इनकरेज करूँगा कि इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करते रहेंगे। जमात को थैंक करते हुए ख़ास तौर पे अबुल अंकल का मैं थैंक यू करूँगा, साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हसन अकबर का थैंक यू करूँगा। हसन अकबर आए हुए थे, उनको जल्दी निकलना पड़ा। आगा शहीदी माशाल्लाह, एंड हसन अस्कर जो ट्रेजरर भी हैं, जो IT कमेटी के हवाले से काफ़ी काम करते हैं, उनका भी मैं थैंक यू करूँगा। जो हमारे शुरू के आपको नोट मिला था जवाद खाकी का, उनको मैं थैंक यू करूँगा। माशाल्लाह उन्होंने कम्युनिटी के लिए काफ़ी कुछ किया है। एक्स माइक्रोसॉफ्ट हैं, उन्होंने अपने स्टार्टअप्स किए हुए हैं और वो कम्युनिटी को काफ़ी हेल्प करते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स
खुरम भाई फॉर द एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये लोग के पीछे एक पूरी टीम है, जो वॉल्टियर्स है, ऑफिस स्टाफ है, मैं उनका ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ। हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में लगती है। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको ऑडियंस के तौर पे थैंक यू करूँगा। मेरे ख़्याल से पिछले 3 लेक्चर्स को अगर मैं देखूँ तो दिस इज़ द हाईएस्ट अटेंडेंस आई हैव सीन, एंड माशाल्लाह इवन द प्रीवियस लेक्चर्स हैड गुड अटेंडेंस। मैं पीछे खड़ा हुआ था जब एक एक करके भागम दौड़ी करके चेयर्स लेकर आ रहे थे हम लोग, बिकॉज सीटिंग शॉर्ट हो गई थी। एंड अभी भी कुछ लोग पीछे खड़े हुए माशाल्लाह। इसमें मैं ऑडियंस को, कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करूँगा कि आप क्यूरियस हैं, आप मालूम करना चाह रहे हैं, आप चेंज के बारे में मालूम करना चाह रहे हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, और ये वो जज्बा है जो ज़रूरी है। अगर इस जज्बा को कभी आपने छोड़ा तो समझे वहीं पे हमारे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। ये जज्बा रखें, सीखते रहें, सीखना कभी ना छोड़ें। रब्बि ज़िदनी इल्मा हमारे मज़हब में भी है, और उसके अलावा भी आपने देखा होगा दुनिया में नई चीज़ें आते रहती हैं, सीखते रहें। एंड अगेन थैंक यू जमात फॉर ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। अस्सलाम वालेकुम। और फाइनली मैं गुजारिश करूँगा ऑनररी सेक्रेटरी खुद जमात जनाब आगा असगर शहीदी साहब से कि वो आएँ और खुरम शेख साहब को खुद जमात की जानिब से एक थैंक्स के तौर पे एक शील्ड पेश करें। खुरम साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, और इसी तरह आगे भी अपने एक्सपीरियंस से हमें बहरामंद करते रहेंगे। बाकी आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने भी अपने मसरूफ़ औक़ात में से टाइम निकाला और इस सेशन को अटेंड किया। जिसके सवालात रह गए हैं, कम वक्त होने की वजह से सबको मौका नहीं दिया जा सका, तो नीचे नेटवर्किंग सेशन है, रिफ़्रेशमेंट भी मौजूद है, नमाज का भी इंतज़ाम है। तो खुरम शेख साहब से जो भी इनफॉर्मली सवालात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।